बिकॉज जो आपकी वो थी मैडम शकीला मैम, जो ओएसडी थी हमारी एनईपी की, जिन्होंने एनईपी पर काम किया, जो पीछे हैं एनईपी बनने के, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है, वो बहुत नाराज हो गई थी पिछले ग्रुप से, बिकॉज नोबडी इंटरेक्टेड विद हर. शी वाज वेरी एंग्री, है ना. Somebody is coming from directly from that background who has worked on NEP, and people were not responding, not asking questions. So she was very angry with the group. So I am very happy with you people that you have responded, you were asking questions, and you were supplementing and complimenting ma'am. That's good. And it is always, you are performing, but credit is mine. So as and when our, I think sir has joined us. Assalamu alaikum sir, Jasim sir. जी जी, वालेकुम सलाम जी, सब खैरियत? जी sir. Sir, we have right now 39 participants, sir. As 40 participants, as and when the strength will reach to 50, we will start. So just 1 minute, sure. you can wait. Only 1 minute. Yes, sir. Because, sir, there are around more than 150 participants in our group. So at least 50 should join, then we'll start, sir. Just 1 minute. 44 strength over. Yes, sir. If you permit us, sir, can we start, sir? Yes, sure. Sir, one line about participants, sir. They are very active, and it's my duty to introduce them to you too. They are very active, sir, and they are very interactive. And all the previous resource persons, I think this is the fourth day. Yes, fourth day, fifth day. So fourth day, sir, fourth day. On 23, holiday was there. Fourth day, all of the resource persons have praised them because they are taking active participation in the discussions. And they are also, they know the etiquettes of online teaching learning. As and when you will ask them, they will open their mic. Otherwise, their mics are on mute mode, sir. And the participants, we were waiting for a very senior teacher educator from Jamia Millia Islamia, New Delhi, Professor Jasim Ahmad sir. A very dynamic personality, although he does not need any introduction, but formally I have to introduce because he may be new to some of you. Professor Jasim Ahmad sir, who is working as a professor in the Institute of Advanced Studies in Education, Jamia Millia Islamia, Faculty of Education. Sir has published, I think, around 5 books. Some of them are Teaching of Biological Sciences, which he has published in 2009. A very good book. I have also read that book for teaching methodology, especially. Although I am from social science background, I also refer and I also ask my students to consult that book. It's a very good book. Second book he has written is Educational Measurement and Evaluation, and then third book, Computer Applications in Education, Personality Pattern and Job Satisfaction. And he has, along with these books, he has also edited many books. Like one book is on action research, another on understanding the self, and another on pedagogy of science, reflective practices.
He has also published a good number of papers, around 70 research papers, good research papers. He has published in various reputed national and international journals. He has also contributed around 15 papers in different books, edited books. He has also regularly contributed material for distance education, self-learning material, SLM. Around 20 chapters or modules he has contributed. He has presented around 45 papers in different national and international conferences, seminars. He has also completed successfully many research projects, minor as well as major research projects. He is the honorary director of Center for Distance and Online Education, Jamia Millia Islamia. Other administrative responsibilities he has shouldered are: he has been the officiating principal, Jamia Senior Secondary School, member of Central Annual Reports Committee, Deputy Director, Design Innovation Center, Jamia Millia Islamia, elected member of Academic Council, Jamia Millia Islamia, nodal officer of IQAC, member core committee, University Vision document, Jamia Millia Islamia. He has been the assistant proctor of Jamia Millia Islamia. At departmental level, he has shouldered various responsibilities like coordinator of various courses and all. Due to the shortage of time, I'm skipping many things. He has been awarded Proud Indian Eminent Professor Award in 2022 by in teacher education by Andhra Pradesh government. He has guided successfully around 12 PhD theses. I have old data, otherwise the number would have increased definitely. Under here, and around 7-8 research scholars are still continuing their research under his kind supervision. He has also supervised around 25 dissertations in the at PG level. Has organized various courses, seminars in the Department of Education of Jamia Millia Islamia. He has regularly developed e-content for EPG Pathshala and or for other platforms. His lectures, various lectures are on YouTube. You can search by his name. A very sought after resource person for SRDCs and TTCs of our country. Chaired various technical sessions. He is regularly associated with many universities like UGC, which is in Delhi, UGC New Delhi, from Aligarh Muslim University, from Delhi University, University of Kashmir, CBSE, Jaunpur University, Integral University, SCRT, and many other academic bodies. And Sir is a very good teacher and has always been a wonderful resource person for anywhere, wherever he is invited. We are very happy, sir. You have given us time. Sir will talk today with us on the topic holistic and multidisciplinary education. Sir, thank you very much. You are busy. We know that how much you are busy these days in examination and admission. And sir, even then you have given us time. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Okay, thank you so much, Shakir Sahib. I think I'm visible to all, of course, and audible to all as well. आवाज जा रही है हमारी? Yes, sir. You are audible. Yes, sir. Yes, sir. Yes. And the slide is also visible. Yes, Yeah, sir. it is visible. Okay, thank you so much. So first of all, I must thank Dr. Shakir Hussain and the team of HRDC Madan Malviya Teacher Training Center, Aligarh Muslim University, for giving me the opportunity to have an interaction with you all. And such interaction is always, beneficial for all of us because it gives us an opportunity to learn from one another. And I'm sure that this interaction of almost 1.5 hours will be beneficial for all of us. I also will be able to learn from your experiences when you will share your experiences through discussion and deliberation, through question and answer, through your observations. And of course, I will be talking about the topic of this session, holistic and multidisciplinary education in the light of NEP 2020. I'm dead sure that each one of us, everybody nowadays is familiar with all these major concepts which have come out of the National Education Policy 2020, and Government of India has been planning, has been trying to sensitize teachers, common people, intelligentsia, and members of the civil society to be well aware about the different components of NEP 2020 and how it can be implemented effectively in the days to come. Now, the first important question which comes into my mind that why NEP 2020 has given focus on holistic and multidisciplinary education. Because to my understanding,
education should always be holistic and multidisciplinary in nature. Education is required to be holistic in nature. If you left for a while multidisciplinary, but you can't escape, holistic nature of education. Education is always required to be holistic, and education has been supposed to be holistic in nature since time immemorial. If you can recall the days of Gurukul system in ancient India, it was holistic system of education. Holistic development of personality of the child was done. They were taught all the subjects which were available at that time, not a particular subject, but all the subjects. So education has always been considered to be holistic in nature. तालीम और शिक्षा हमेशा ही होलिस्टिक होनी चाहिए, और इसका परसेप्शन हमेशा रहा है कि होलिस्टिक होनी चाहिए. This is another matter whether it was holistic or not, whether there was some problem in becoming education as a holistic process. There might have been some issues, some concerns, some challenges, some problems, because of which the prevailing system of education would not be considered as holistic in nature. ये एक अलग बात है कि जो शिक्षा चल रही थी, तालीम का जो निज़ाम चल रहा था, शिक्षा की जो प्रक्रिया, शिक्षा का जो तंत्र चल रहा था, जो आज की डेट में चल रहा है, क्या हम उसे होलिस्टिक कह सकते हैं या नहीं कह सकते? शायद पॉलिसी मेकर्स को ऐसा लगा, और ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स को, चेयरमैन को शायद जरूर लगा होगा ऐसा कि आज की डेट में 2020 के पहले की बात करूं, मैं 2020 के दरमियान की बात करूं, जब ड्राफ्टिंग कमेटी काम कर रही थी, पूरे इंडिया में सर्च कर रही थी, जानने की कोशिश कर रही थी, what sort of education we are providing to our young minds, what sort of education we are providing to the school kids, to the university undergraduates and postgraduate students. There might have so many questions in their mind. They might be trying to see whether education is holistic or not. What are those things which is creating a problem in coining the term and labeling the prevailing system of education holistic in nature? शायद उनको लगा कि होलिस्टिक जो होना चाहिए, होलिस्टिक शायद हो नहीं पा रही है. वैरायटी ऑफ रीजंस माइट बी देयर, और इसलिए एनईपी 2020 में इसको स्पेशल फोकस दिया गया कि नो, वी नीड टू हैव होलिस्टिक एजुकेशन. शिक्षा हमेशा होलिस्टिक होनी चाहिए, सर्वांगीण विकास होना चाहिए बच्चों का, चाहे वो स्कूल के बच्चे हों, चाहे वो यूनिवर्सिटी के बच्चे हों, कॉलेज में पढ़ रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, प्राइमरी स्कूल में हो, मिडिल स्कूल में हो, हाई स्कूल में हो, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, कहीं भी हो, शिशु केंद्र में हो, आप मदरसे में पढ़ रहे हो, आप किसी गुरुकुल में पढ़ रहे हो, किसी भी सिस्टम ऑफ एजुकेशन में आप हो, किसी भी इदारे में हो, किसी भी संस्थान में आप पढ़ रहे हो, शिक्षा को हमेशा ही होलिस्टिक होना चाहिए. बच्चों का विकास होलिस्टिक होना चाहिए, सर्वांगीण होना चाहिए, ऑलराउंड होना चाहिए, होलिस्टिक पर्सनालिटी को निकल के आना चाहिए. ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि एक आदमी फिजिक्स का तो एक्सपर्ट हो गया, फिजिक्स का माहिर है, फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को, थ्योरीज को, लॉज को सिर्फ जानता नहीं है, एनालिसिस भी करना जानता है, उसका विश्लेषण करना जानता है, उसकी अच्छाई बुराई और क्रिटिक भी करना जानता है. वो कॉपरनिकस को क्रिटिक कर सकता है, वो आइंस्टाइन को क्रिटिक कर सकता है, वो न्यूटन को क्रिटिक कर सकता है, वो फैराडे को क्रिटिक कर सकता है, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट को, और दूसरे इकोनॉमिक्स के, कॉमर्स में पॉलिटिकल साइंटिस्ट को, सोशल साइंटिस्ट को वो क्वेश्चन कर सकता है, क्रिटिक कर सकता है. लेकिन एक इसके साथ साथ क्या वो उसका जो लाइफ स्टाइल है, उसकी जो फैमिली लाइफ है, उसकी जो सोशल लाइफ है, उसकी जो एकेडमिक लाइफ है, उसके जो जिस कंपनी में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस कॉलेज में, जिस यूनिवर्सिटी में, जिस कंपनी में काम करता है, वहां पर उसकी जो लाइफ है, सोशल रिलेशंस हैं, वो भी क्या अच्छे हैं या नहीं, वो भी हेल्दी हैं या नहीं. यानी कि उसका जो एटीट्यूड है, जो उसका इमोशंस है, जो उसका वैल्यूज है, जो अखबार है, जो मूल्य हैं, सामाजिक मूल्य हैं, आर्थिक मूल्य हैं, जो कल्चरल वैल्यूज है, उसकी सांस्कृतिक जो मूल्य है उसके,
क्या वो सब भी डेवलप हुआ है या सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का विशेषज्ञ हो गया है? अपने आप में एक बड़ा सवाल। तो गोया कि शिक्षा, एजुकेशन तभी मानी जाएगी होलिस्टिक जब पूरी पर्सनालिटी को डेवलप कर पा रहे हो आप कंटेंट भी जानते हो, थ्योरी भी जानते हो, उसको प्रैक्टिस करना भी जानते हो, आपके अंदर स्किल भी हो, और फिर समाज में जिंदगी गुजारने का जो तरीका होता है, एक नॉर्म्स होता है, एक सोशल सिस्टम होता है, उसको भी आप लेकर के चल पा रहे हो, अपने मूल्यों को लेकर चल पा रहे हो या नहीं चल पा रहे। शायद ये समस्या नजर आ रही थी। हम सब टीचर हैं, हम लोग जानते हैं यूनिवर्सिटी में आजकल क्या हो रहा है, स्कूल में आजकल क्या हो रहा है, कितनी प्रॉब्लम है, इनडिसिप्लिन की प्रॉब्लम है, कितनी प्रॉब्लम वैल्यू सिस्टम की प्रॉब्लम है, वैल्यू इज इनकल्केशन की प्रॉब्लम है, बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारे कंसर्न्स थे। शायद इसीलिए NEP 2020 ये फोकस कर रहा है कि नहीं भाई, कुछ करने की जरूरत है। हम सिर्फ बच्चों को क्लास में और लेबोरेटरी के अंदर पढ़ा लिखा करके, प्रैक्टिकल करा करके और डिग्री बांटते नहीं रह सकते। शिक्षा से जो चाहा जा रहा है वो होना चाहिए, एक मुकम्मल शख्सियत की नशोनुमा होनी चाहिए, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए। और इसलिए होलिस्टिक एजुकेशन पर फोकस किया गया, और होलिस्टिक एजुकेशन लाने के लिए, होलिस्टिक एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए ये बहुत जरूरी था कि मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया जाए, तभी होलिस्टिक पॉसिबल है। होलिस्टिक हो नहीं सकता है बगैर मल्टी डिसिप्लिनरी किए हुए। कैसे नहीं हो सकता ये मैं बाद में बात करूंगा। तो बहरहाल ये तो मेरा ओपनिंग स्लाइड था जो बात कर रहे थे। तो गोया कि हमें अब ये देखने की जरूरत है कि क्यों होलिस्टिक जरूरी है। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा इन बातों के अंदर, जो की पॉइंट्स हमारे डिस्कशन का, डेलिब्रेशन का। एजुकेशन से हम क्या चाहते हैं, शिक्षा से हम चाहते क्या हैं, चाहे एज ए टीचर की बात करूं, एज ए कॉमन मैन की बात करूं, एज ए कॉमन सिटीजन की बात करूं, पेरेंट्स की बात करूं, हम अपने इंटेलिजेंसिया की बात करें, हम अपने जो सोसाइटी के लोगों की बात करें, तो आम इंसान, आम पेरेंट्स, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या पढ़ा लिखा नहीं हो, चाहे वो तालीम याफ्ता हो या तालीम याफ्ता नहीं हो, चाहे वो गवर्नमेंट सर्वेंट हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में काम करता हो, वो क्या चाहता है शिक्षा से, एजुकेशन से क्या चाहा जाता है, और गवर्नमेंट क्या चाहती है, एजुकेशन क्यों प्रोवाइड करना चाहती है, सोसाइटी एजुकेशन को क्यों डेवलप करती है, क्रिएट करती है, एक एजुकेशन का सिस्टम बनाती है ना। सोसाइटी ने तो डेवलप किया, बाद में से स्टेट तो बाद में आया, सोसाइटी तो पहले बनी। अगर देखा जाए, हिस्ट्री वाले जानते होंगे अच्छे से, सोशियोलॉजी वाले अच्छे से जानते होंगे कैसे सोसाइटी क्रिएट होती है ना। स्टेट तो बाद में बना, गवर्नमेंट का सिस्टम तो बाद में आया, इंडिविजुअल पहले आया, फैमिली उसके बाद आई, और सोसाइटी उसके बाद डेवलप हुआ, और सोशल सिस्टम धीरे धीरे डेवलप हुआ। बाद में स्टेट की जरूरत महसूस हुई तो स्टेट बना। तो सोसाइटी हमेशा एजुकेशन एक पर्पस के तहत चाहती है, वो पर्पस आज भी सस्टेन करता है, आज भी करता है सस्टेन। एज ए पेरेंट हम क्या चाहते हैं एजुकेशन से, एज ए टीचर हम क्या चाहते हैं एजुकेशन से, एज ए कॉमन सिटीजन हम क्या चाहते हैं सिटीजन से, एजुकेशन से। ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि रोल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन जनरल। आम तौर पे एजुकेशन और ट्रेनिंग का रोल क्या होना चाहिए, ये सबसे बुनियादी चीज है। जब इस रोल को समझेंगे हम, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं कि उस रोल को अचीव करने के लिए एजुकेशन को बनाना पड़ेगा होलिस्टिक, और होलिस्टिक के रास्ते पे चलने के लिए, होलिस्टिक के पगडंडी पे चलने के लिए, होलिस्टिक के मार्ग पर चलने के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी आपकी जरूरत बन जाती है। इसलिए कि खास तौर पे थीम एंड वैल्यूज, एथिक्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल एजुकेशन, जो सब थीम है इस होलिस्टिक और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को डेवलप करने का, जो सब थीम 3 है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के अंदर, NEP जो कहता है, NEP का डॉक्यूमेंट कहता है, वो इसके तहत आता है। तो होलिस्टिक मल्टी डिसिप्लिनरी अपने आप में सब चीज को लिए हुआ है। तो लेट अस डिस्कस फर्स्ट ट्राई टू सी द रोल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन जनरल। रोल क्या है एजुकेशन, क्या ये रोल हम प्ले कर पा रहे हैं हमारा एजुकेशन सिस्टम, या नहीं कर पा रहा, कितना कर पा रहा है, किस हद तक कर पा रहे हैं, अप टू व्हाट एक्सटेंट आवर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग is achieving these roles, is performing these roles ना। दो बात, एक तो क्या आपको लगता नहीं है कि ये जो रोल मैं भाई बात करने जा रहा हूँ, ये रोल एजुकेशन का हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा, पास्ट में भी रहा है, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी रहेगा। ये इंपॉर्टेंट रोल्स, इससे एजुकेशन भाग नहीं सकता, एजुकेशन इसको नकार नहीं सकता, और एजुकेशन इससे अपना मुंह मोड़ नहीं सकता। वो एजुकेशन और एजुकेशन सिस्टम जो इन 5 रोल से दूर होगा,
इसका मतलब एजुकेशन में बहुत बड़ी कमी होगी। और अगर इन 5 रोल को अच्छी तरीके से एजुकेशन कर रहा होगा तो आप कह सकते हैं मेरे ख्याल में कि एजुकेशन बहुत ही, आपका सिस्टम बहुत अच्छा है, साउंड सिस्टम ऑफ एजुकेशन है हमारे पास। क्यों? इसलिए कि हम ये रोल प्ले कर पा रहे हैं एजुकेशन के जरिए, जो किया जाना चाहिए। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रोल एजुकेशन का जो है वो एक कल्चरेटिंग रोल, रिफाइनिंग परसेप्शंस and sensitivities so as to enrich our culture and promote national cohesion। शिक्षा का मतलब ये सबसे पहला रोल है एजुकेशन का। एजुकेशन और ट्रेनिंग, बच्चों की ट्रेनिंग, बच्चों का एजुकेशन। एजुकेशन बगैर ट्रेनिंग के बेकार है यार। ट्रेनिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि लॉ की ट्रेनिंग है और टीचर बनने की ट्रेनिंग है, डॉक्टर बनने की ट्रेनिंग है, इंजीनियर बनने की ट्रेनिंग है। जिंदगी गुजारने के लिए, अच्छा मानव बनने के लिए, अच्छे मानव निर्माण के लिए शिक्षा के साथ साथ ट्रेनिंग भी जरूरी है। एजुकेशन हमेशा ट्रेनिंग को साथ लेके चलती है। टीचर अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा होता है, शिक्षा भी दे रहा होता है, ट्रेनिंग भी दे रहा होता है, बोथ गो साइड बाय साइड। तो सबसे पहली चीज क्या है? रिफाइनिंग परसेप्शंस एंड सेंसिटिविटीज सो एज टू एनरिच आवर कल्चर एंड प्रमोट नेशनल कोहेशन। शिक्षा को, एजुकेशन को, तालीम को हमेशा ये काम अपने कल्चर को एनरिच करने का काम करना चाहिए। कल्चर को एनरिच करने का काम, कल्चर को डेवलप करने का काम, कल्चर को एनरिच करना, प्रमोट करना, और नेशनल कोहेशन, राष्ट्रीय एकता की भावना को पैदा करना। द होल नेशन इज वन, वी आर वन, वी एज ए सिटीजन आर जस्ट वन, no matter whether we belong to Bihar, Uttar Pradesh, Assam, Kerala, West Bengal, Tamil Nadu, Jammu and Kashmir, Odisha, Andhra Pradesh, or whatever, all the states of the country. So despite lots of diversity in the country, geographical diversity, regional diversity, lingual diversity, cultural diversity, diversity in different aspects of our society, our community, our lifestyle, climatic variation. So despite different diversities, we are united, we are one, we are Indian, and we have to respect that. We have to respect that. वो नेशनल कोहेशन, ये कहते हैं एकता में अनेकता में एकता की बात, जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां अनेकता में एकता वास करता है, प्रैक्टिस किया जाता है। वो उसको प्रमोट करने की जरूरत है। एजुकेशन अगर ये काम कर पा रही है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर पा रही है तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं सवाल अपने आप खड़ा हो जाता है एजुकेशन के ऊपर, और उसे ठीक करने की जरूरत है। दूसरा इंपॉर्टेंट रोल है कॉम्बैटिव रोल। शिक्षा हम क्यों देते हैं बच्चों को? गुरुकुल में शिक्षा के लिए क्यों भेज देते हैं? शिक्षा का मतलब ये कि द एजुकेटेड पर्सन मस्ट फाइट अगेंस्ट द डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज विद इन द इंडिविजुअल एंड डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस विद इन द सोसाइटी। हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। हम अगर एजुकेटेड हैं, हमारे यंग जनरेशन अगर एजुकेटेड है, तो एजुकेशन के थ्रू इंडिविजुअल के अंदर, व्यक्ति के अंदर ये बात पैदा होनी चाहिए, ये ताकत पैदा होनी चाहिए, ये शक्ति पैदा होना चाहिए कि वो अपने अंदर जो निगेटिव फोर्सेस हैं, ऋणात्मक शक्तियां उसके अंदर हैं, निगेटिविटी जो उसके अंदर बढ़ी हुई है, उससे भी फाइट करे, उसको कॉम्बैट करे। और समाज के अंदर जो कुरीति फैली हुई है, माशरे के अंदर जो बुराइयां फैली हुई हैं, चाहे वो रेसिज्म हो, कास्टिज्म हो, रीजनलिज्म हो, कॉमनलिज्म हो, सेक्टेरियनिज्म हो, और इस तरह के बहुत सारे इज्म हो सकते हैं, उनसे अपने आप को भी बचाए और समाज को भी बचाए। हाँ, दोनों को बचाए। ईश्वर विद्यासागर जो है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर सती प्रथा के खिलाफ काम किया, देखा कि समाज में ये कुरीति फैली हुई है, ठीक करने की जरूरत है, काम करना शुरू कर दिया उन्होंने। एक वक्त आया कि खत्म हो गया। ऐसे बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर हुए हैं जिन्होंने काम किया, सभी। तो कॉम्बैट करना, कॉम्बैटिव रोल है एजुकेशन अगर ये अपने बच्चों के अंदर, यंग जनरेशन के अंदर, सिटीजन के अंदर ये कॉम्बैटिव रोल एजुकेशन का जो है उसको अगर पैदा कर दे, तो ये समझ लें कि एजुकेशन हमारा ठीक ठाक चल रहा है काम। और अगर ये चीज पैदा नहीं कर पा रही है तो इसका मतलब हमें सोचने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। हम सवाल बिल्कुल नहीं करने जा रहे हैं, हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि यू एज एन इंटेलेक्चुअल, आई एज एन इंटेलेक्चुअल मस्ट थिंक अबाउट दैट एंड असेस up to what extent these roles are being played and are not played. What are the issues and problems? The third important role is liberating role. Education का मतलब क्या है? अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना, ये तो क्या शिक्षा है। Child or society needs to be liberated from ignorance. अज्ञानता से प्रकाश की तरफ ले जाना, अज्ञानता से आजाद से उसको लिबरेट करना।
जब एजुकेशन आएगा तो अज्ञानता जाएगी। एक बहुत सिंपल सी बात है, प्रकाश आएगा तो अंधकार जाएगा। एजुकेशन आएगा, लिटरेसी आएगी तो इलिटरेसी जाएगा, शिक्षा आएगी तो अशिक्षा जाएगा। लेकिन अगर हम ग्रेजुएट होने के बाद भी हम एक दूसरे की बुराई में लगे हुए हैं, हम पोस्ट डॉक्टर करने के बाद भी नॉर्मल सोशल वैल्यूज को प्रैक्टिस नहीं कर पाते, हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के बाद हम हाई क्लास की डिग्री, हाई क्लास की यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद हम किसी कंपनी के मैनेजर बन जाते हैं, तो हम अपने सबऑर्डिनेट के सबको सताते हैं, परेशान करते हैं, ऑप्रेस करते हैं। अगर हम अपने कारखाने में काम करने वाले जो लेबर होते हैं उनके साथ अगर हम भेदभाव करते हैं, उसको ऑपरेश करते हैं, उनको उनके साथ अगर हम बायस रहते हैं अगर हैं, तो फिर इसका मतलब है कि हमने डिग्री जरूर कमाई है, हमने शिक्षा नहीं अर्जित किया। इसका हमने डिग्री कमाई है, हमने प्रोडक्टिविटी कमाई है, हमने एक स्किल सीख लिया है, हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, हम इनकम को बढ़ा सकते हैं, इसलिए हमको नौकरी मिल रही है। लेकिन ये जो पूरे के पूरे व्यक्तित्व का विकास नहीं हुआ है, इसका मतलब आप कंप्लीट मानव नहीं बने हैं, आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट इसका मतलब नहीं हुआ है, सर्वांगीण विकास नहीं है आपके व्यक्तित्व का। इसका मतलब आपकी शख्सियत का जो इर्तका हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, वो ऑलराउंड नहीं है, लॉपसाइडेड है। लॉपसाइडेड इसलिए है कि आप कुछ लोगों को दबा रहे हैं, कुछ लोगों को मिसयूज कर रहे हैं, आप कुछ लोगों के साथ बायस्ड हो रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। तो लिबरेट कर, एजुकेशन मस्ट लिबरेट द चाइल्ड एंड सोसाइटी फ्रॉम ऑल सच एविल्स ऑफ द सोसाइटी, फ्रॉम इग्नोरेंस, अंधविश्वास, सुपरस्टिशन एंड फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ ऑपरेशन। हाँ, बहुत जरूरी है। अंधविश्वास के मामले में तो पता ही आपको, हिंदुस्तान में चूंकि इतने सारे मजहब के लोग रहते हैं ना, जो पूरी दुनिया में इतना ज्यादा डाइवर्सिटी रिलीजन की नहीं है, इतना ज्यादा बिलीफ सिस्टम का डाइवर्सिटी पूरे ग्लोबल लेवल पे नहीं है जितना इंडिया में। सुपरस्टिशन में सबसे ज्यादा इंडिया में, बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी इन बिलीफ सिस्टम। हाँ, अंधविश्वास, साइंटिफिक टेम्परामेंट की कमी, साइंटिफिक एटीट्यूड की कमी है, वो सारी की सारी चीजें हैं। चौथी चीज है इंटीग्रेटिव रोल। एजुकेशन मस्ट इंटीग्रेट द चाइल्ड विद द सोसाइटी एंड द वर्ल्ड। शिक्षा को हमेशा ही बच्चे को, युद्ध को दुनिया से जोड़ना का काम करना चाहिए, सोसाइटी से जोड़ने का काम करना चाहिए। वही एजुकेशन सबसे अच्छी है जो बच्चे को, चाइल्ड को, युद्ध को सोसाइटी से और वर्ल्ड से इंटीग्रेट कर देती है, जोड़ देती है, लिंक कर देती है। दूसरे शब्दों में कहें तो वही लोग ज्यादा कामयाब हैं जिनकी शख्सियत जुड़ रही है वर्ल्ड के साथ, ग्लोबल मार्केट के साथ, नेशनल मार्केट के साथ, ग्लोबल मार्केट के साथ, वाइड ग्लोबल सोसाइटी के साथ, ग्लोबलाइजेशन के साथ। वो the more they are integrated with the society and with the world, the more advanced they will be. The less they are integrated, the less development will take place. Simple सी बात है, बहुत सिंपल है। And education is a bridge to integrate. एजुकेशन पुल का काम करता है, बच्चे को समाज से जोड़ता है। हाँ, जोड़ने के लिए पुल है, ब्रिज है, लिंकिंग फोर्स है। इसलिए वो शिक्षा जो जोड़ पा रही है, लिंक कर पा रही है, इंटीग्रेट कर पा रही है बच्चे को समाज के साथ, दुनिया के साथ, वर्ल्ड के साथ, वर्ल्ड के सिस्टम के साथ, दुनिया के सिस्टम के साथ, वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ, वर्ल्ड के डेवलप साइंस, वर्ल्ड के जो आजकल के मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ। इसका मतलब एजुकेशन अच्छी है। जो रोल है इंटीग्रेटिव रोल एजुकेशन। आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जमाना है और आज पूरी दुनिया जुड़ी हुई है इंटरनेट के थ्रू। आप देखिए ना, 150 लोग बैठे हैं, हम लोग अभी पता नहीं 150 जगहों पे बैठ करके इंटरेक्शन कर रहे हैं। वी ऑल आर सिटिंग एट 150 डिफरेंट प्लेसेस, 150 डिफरेंट प्लेसेस। और अगर एएमयू के एचआरडी को जोड़ दें तो 151 हो गया। और ये भी मैं जानता हूँ कि एएमयू के एचआरडी में भी हो सकता है अभी कि शाकिर साहब अपने घर पे होंगे और एचआरडी के डायरेक्टर हो सकता है अपने ऑफिस में होंगे, या वो भी अपने घर पे होंगे, और भी लोग अपने अपने लोकेशन पे देख रहे होंगे। ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो गोया कि दिस इज इंटीग्रेशन बिकॉज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो एजुकेशन आएगा तभी तो ये सारी चीजें आएंगी। हमें लगता है कि आज की डेट में ये रोल जो है वो सबसे बड़ा रोल है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल है
और ये रोल सबसे अच्छी तरीके से शायद प्ले हो रहा है बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और आखिरी जो रोल है वो है इकोनॉमिक रोल। इकोनॉमिक रोल, एजुकेशन मस्ट मेक इंडिविजुअल्स एबल टू अर्न देयर लाइवलीहुड। एजुकेशन को हमेशा यूथ को इस लायक बनाना चाहिए कि वो लाइवलीहुड अर्न कर सके, जिंदगी गुजारने का एक मार्ग उसका प्रशस्त हो जाए, अर्निंग के काबिल हो जाए, है ना। लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी होनी चाहिए, है ना। या तो साथ साथ हो या लर्निंग के कंप्लीट होने के बाद, लेकिन हो जरूर। ऐसा ना हो कि डिग्री लेकर के वो उसको डिग्री जो बक्से में बंद करके रख देना पड़े और उससे कुछ मिले नहीं। ये बात गांधी जी ने महात्मा गांधी ने 1937 में कही थी वार्धा कॉन्फ्रेंस के अंदर, जो बेसिक एजुकेशन का कॉन्सेप्ट लेके आए थे कि बच्चों को स्कूल में शिक्षा के साथ साथ कुछ कला सिखाओ, कौशल सिखाओ, स्किल सिखाओ, ताकि बच्चा स्कूल छोड़ के चला जाए तब भी कुछ ना कुछ कमाने के लायक हो जाए। वो चीजें तो NEP 2020 उन सारी बातों को फोकस कर रहा है कि हमें एजुकेशन को बनाना पड़ेगा होलिस्टिक बनाना, इसलिए कि ये 5 इंपॉर्टेंट रोल हैं, बड़े रोल हैं, इंपॉर्टेंट की रोल्स हैं एजुकेशन। वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, कहीं ना कहीं है प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं इश्यूज हैं। That's the reason that the policymakers thought about talking about and implementing the concept of holistic education. ये जरूर होलिस्टिक एजुकेशन तभी होगा जब ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा बच्चे का। इसलिए चैप्टर 11 है NEP 2020 का, चैप्टर 11 इसका टाइटल ही रखा है टुवर्ड्स मोर होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन। दिस इज द टाइटल ऑफ द चैप्टर 11 of NEP 2020, wherein the focus is being put on bringing or carrying out education towards holistic mode and multidisciplinary. एजुकेशन को ऐसा बनाना है जो होलिस्टिक हो, मल्टीडिसिप्लिनरी। वो कैसे होगा, क्या होगा उसके अंदर? ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो बच्चे के कंप्लीट डेवलपमेंट करे, बच्चे का, उसके बॉडी का भी डेवलपमेंट हो, माइंड का भी डेवलपमेंट हो और सोल का भी, तीनों का डेवलपमेंट, तीनों का बैलेंस, संतुलित डेवलपमेंट है, बॉडी, माइंड एंड सोल। शरीर का जिसमें स्किल डेवलप होता है, माइंड का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, और सोल आत्मा का जिसमें कि वैल्यूज की बात करते हैं, फीलिंग्स की बात करते हैं, इमोशंस की बात करते हैं, उसका एथिक्स की बात करते हैं। If all these 3 domains are developed in a balanced manner, then we can claim that yes, our education system is providing holistic development to the learners. And whosoever get educated through schooling and through university system of education, they are having a balanced personality in which all these 3 domains, the cognitive, affective and psychomotor, the body, mind and soul, has been developed in a balanced manner, है ना। वो इंसान, ऐसा इंसान डेवलप है जो अपने 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 सब्जेक्ट पर उसको कमांड भी हो, कंटेंट को भी जानता हो, थ्योरी को भी जानता हो, उसको जिंदगी में अप्लाई करने का स्किल भी हो, और उसकी मदद से लाइवलीहुड अर्न भी कर सकता हो, और समाज में एक दूसरे के साथ रहने का हुनर भी उसके अंदर आता हो। हाँ, जिंदगी जीने का सलीका भी उसके अंदर हो। जिंदगी जीना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है। जिंदगी जीने का तरीका ना एक अलग चीज है। जिंदगी गुजारने के लिए, जिंदगी जीने के लिए, जिंदगी को बेहतर से गुजारने के लिए, है ना, सिर्फ तालीम काफी नहीं है, सिर्फ एजुकेशन काफी नहीं है। इसलिए देखा होगा आपने, खुद परसीव किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा, आपके आसपास भी बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। कुछ लोग मिलेंगे जो बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत अच्छे एजुकेटेड हैं, लेकिन लाइफ उनकी बहुत अच्छी नहीं गुजर रही, उनकी फैमिली लाइफ अच्छी नहीं, उनके सोशल रिलेशन अच्छे नहीं है, नेबरहुड के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, पड़ोसी के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, अपने गांव के, अपने मोहल्ले के, अपने गली के, अपने अपार्टमेंट के लोगों के साथ मिलना जुलना उनका नहीं है। एक देखेंगे दूसरा आदमी होगा, मिलेगा आपको, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत ज्यादा तालीम याफ्ता नहीं है, बहुत ज्यादा डिग्रियां उसके पास नहीं है, छोटी मोटी नौकरी करता है, चाहे प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, लेकिन बड़ा सोशल है, सब लोग पसंद करते हैं उसको। सब लोग, IAS ऑफिसर भी अगर कोई अपार्टमेंट में है, जरूरत पड़ती है तो बुलाता है, भाई जरा देखो, जरा मिश्रा जी को बुलाओ, जरा खान साहब को बुलाओ, हाँ, श्रीवास्तव जी को बुलाओ, जरा वही याद आते हैं। क्यों? इसका मतलब है कि एजुकेशन का होना इस बात की अलामत नहीं है, इस बात का संकेत नहीं है कि आपके अंदर वैल्यूज भी होंगे, सोशल वैल्यूज और एथिक्स भी होंगे, मोरालिटी भी होंगे। दोनों चीजें अलग अलग हैं।
दोनों को एक साथ डेवलप करना होलिस्टिक एजुकेशन, उसके लिए चैलेंजिंग कि कैसे करें। ये भी सीखना होगा, बच्चों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, स्कूल के अंदर, हर जगह हमें बैलेंस करके लेके चलना पड़ेगा। बैलेंस करके लेके नहीं चलेंगे तो हमेशा प्रॉब्लम में रहेंगे, हमेशा रहेंगे प्रॉब्लम। दिस इज द मेन फोकस ऑफ होलिस्टिक एजुकेशन। अब होलिस्टिक एजुकेशन एक अलग चीज है, जो हम कहते हैं प्रोविजन की बात। होलिस्टिक लर्निंग को भी इंश्योर करना है। Just as a teacher, as a curriculum planner, as a curriculum developer, as a principal of the college or a school, as a managerial person, just we can't claim that we are providing holistic education. We are having the components of holistic education. We are very good. We are having very good teachers, excellent teachers to teach theory classes and to conduct laboratory work and field work and co-curricular activities and different kinds of cultural programs through which holistic education can be provided. You can claim, but just claiming is not important. As a teacher, as a manager of education, we have to see whether on providing holistic education, whether the claim of holistic education is being translated or not. And for whether it is being translated or not, you will have to look at the learners. लर्निंग हो रही कि नहीं होलिस्टिक। ये बात भी हो सकती है कि होलिस्टिक एजुकेशन तो आप दे रहे हैं, देने को क्लेम कर रहे हैं आप, लेकिन बच्चे की लर्निंग तो होलिस्टिक हो नहीं रही। तो होलिस्टिक लर्निंग को भी सामने रखना पड़ेगा और ये चेक करना पड़ेगा, एसेस करना पड़ेगा, देखते रहना पड़ेगा कि होलिस्टिक लर्निंग बच्चे की हो पा रही है या नहीं। इसलिए ये बात ध्यान में रखने की जरूरत है कि क्लेम करना, प्रोवाइड करना, प्रोविजन होना एक अलग चीज है होलिस्टिक एजुकेशन का, लेकिन उसका नतीजा क्या है, होलिस्टिक लर्निंग हो रही है नहीं, इसका मतलब है टीचर की जिम्मेदारी बढ़ जाए। टीचर को देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, एसेस करना पड़ेगा, लगातार ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि जो होलिस्टिक एजुकेशन हम दे रहे हैं बच्चों को, जो टारगेट हमारा है, पूरा जो विजन हमारा है कि उसका सर्वांगीण विकास हो, ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, तीनों डोमेन डेवलप हो रहा हो, कॉग्निटिव भी, अफेक्टिव भी, साइकोमोटर भी डेवलप हो रहा हो, तो वाकई हो रहा है नहीं हो रहा है। इसलिए बच्चों की होलिस्टिक लर्निंग को इंश्योर करना पड़ेगा। क्लास में जो बच्चा सवाल का जवाब नहीं दे पाता है तो उसे पूछना पड़ेगा, राम तुम बताओ, रमेश तुम बताओ, अहमद तुम बताओ, तुम्हारी क्या राय है, गीता तुम बताओ, इस बारे में तुम्हारी क्या राय है। गीता कभी बोलती नहीं है क्लास में, रमेश कभी बोलता नहीं है, अहमद कभी जवाब नहीं देता है, कभी सवाल नहीं करता है, तो उन्हें सवाल करने के लिए उकसाना पड़ता है, उन्हें जवाब देने के लिए तैयार करना पड़ेगा, यानी कि उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा लर्निंग के अंदर, तब होलिस्टिक लर्निंग होगी। वरना हम ख्वाब देखते रहेंगे, हम क्लेम करते रहेंगे कि हम होलिस्टिक एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन बच्चों की लर्निंग होलिस्टिक हो नहीं रही है। होलिस्टिक लर्निंग के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट टीचर को करना। We have to ensure that each child sitting in the class, each learner available in the laboratory must learn skills, must earn knowledge, must gain knowledge. अब वो गेन हो रहा है या नहीं, अर्न हो रहा है या नहीं, स्किल डेवलप हो रहा है नहीं, ये उनके परफॉर्मेंस से पता चलेगा। तो इनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उसके लिए रास्ते निकालने पड़ेंगे। डिफरेंट तरीके हो सकते हैं इन्वॉल्व करने के, क्वेश्चन आंसर हो सकता है, फील्ड वर्क हो सकता है, ग्रुप डिस्कशन हो सकता है ना, एक्सटेम्पोर कॉम्पिटिशन हो सकता है। देयर मे बी वैरायटी ऑफ थिंग्स, बट वी हैव टू इंश्योर इफ देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, all 50 are learning. That is important. Holistic learning is going on for each one available in the class. तभी हम क्लेम कर सकते हैं कि यस होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है, वरना फिर मुश्किल होगा। ये सारी चीजें पारा 11.3 चैप्टर 11 में, पारा 11.3 में NEP 2020 कहता है ए होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, a holistic and multidisciplinary education would aim to develop all capacities of human beings। जो मैं पहले से बात कर रहा था वही चीजें हैं जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट कहता है, all capacities of human beings, और ये बाद में लिखता भी है इंटेलेक्चुअल, एस्थेटिक, सोशल, फिजिकल, इमोशनल एंड मोरल इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। इंटीग्रेटेड मैनर में सभी तरह के डेवलपमेंट हो रहा है, तब वो होलिस्टिक होगा। Such an education will help develop well-rounded individuals। well-rounded individuals वो individuals जिनकी पर्सनालिटी well-rounded है, all-round है। कोई भी पक्ष जो उसके व्यक्तित्व का है वो अधूरा नहीं रह गया, अछूत नहीं रह गया, टच हुआ है।
उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी हुआ है, उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी हुआ है, उसका मोरल डेवलपमेंट भी हुआ है ना, उसका एस्थेटिक डेवलपमेंट भी हुआ है, उसका सोशल डेवलपमेंट भी हुआ है, उसका इमोशनल डेवलपमेंट भी हुआ है. ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट हैज टेकन प्लेस. ये वेल राउंडेड इंडिविजुअल दैट पॉजेस क्रिटिकल 21st सेंचुरी कैपेसिटीज. 21st सेंचुरी की जो कैपेसिटीज हैं, रिक्वायर्ड है, आज मार्केट में जरूरत है ना, वो सब डेवलप हुआ है. फिल्ड अक्रॉस द आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, लैंग्वेज, साइंसेज, सोशल साइंसेज एंड प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड वोकेशनल फील्ड्स, एंड एथिक ऑफ सोशल एंगेजमेंट, सॉफ्ट स्किल्स जो आजकल बहुत मार्केट में डिमांड है, सच एज कम्युनिकेशन, डिस्कशन एंड डिबेट, एंड रिगरस स्पेशलाइजेशन इन ए चूजन फील्ड ऑफ फील्ड. ये चीज. Such holistic education shall be, in the long term, the approach of all undergraduate programs, including those in professional, technical, and vocational disciplines. चाहे वो डिसिप्लिन वोकेशनल का हो, चाहे वो टेक्निकल का हो, चाहे वो प्रोफेशनल का हो, या प्योरली एकेडमिक हो, सबको होना पड़ेगा मल्टी डिसिप्लिनरी इन अप्रोच. सारे यूजी प्रोग्राम्स विल बिकम मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर. आज जो तकरीबन शुरू हो चुका है, तमाम यूनिवर्सिटी ने शुरू कर दिया है ना, मल्टीपल एंट्री सिस्टम वगैरह का अप्रोच, 4 ईयर अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम जो शुरू हुआ है, वो सब मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ हुआ, होलिस्टिक और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच. पर्पस ये जो मैं अब डिस्कस किया और जो एनईपी 2020 का पारा 11.3 ये कहता है, उसी पारा के अंदर उसमें एक फोकस है जो सब थीम 3 है. वो कहता है कि इसकी खास तौर पे जरूरत क्यों है? जरूरत इसलिए कि हम ये देख रहे हैं समाज के अंदर, माशरे के अंदर, है ना. आपको बताऊं कि कोठारी का नाम आपने सुना होगा, डॉक्टर प्रोफेसर DS कोठारी, दौलत सिंह कोठारी का नाम आपने सुना होगा. तो प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी जो थे, फिजिक्स के प्रोफेसर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और एजुकेशन पॉलिसी के चेयरमैन रहे. DS कोठारी कमीशन 1968 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दिया, पहली सबसे बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव जो पॉलिसी हिंदुस्तान की है, उसी की वजह चेयरमैन. और उन्होंने कहा एक मौके पे, उन्होंने कहा कि पूरी हमारे जो ग्लोबल लेवल पे और खासतौर पे हिंदुस्तान में कहा कि 2 तरह के स्पाइरल काम कर रहे हैं. एक GHT स्पाइरल है और एक STP स्पाइरल. साइंस, टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्टिविटी का स्पाइरल है, बड़ी तेजी से ऊपर जा रहा है. साइंस, टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्टिविटी, STP स्पाइरल. और दूसरी तरफ है GHD, ग्रीड, हैट्रेड एंड डिल्यूजन का स्पाइरल. लालच, एक दूसरे से नफरत और भ्रम की स्थिति, वो दूसरा स्पाइरल है जो नीचे की तरफ आ रहा है, और ये समाज में परेशानी पैदा कर रहा है. दिस इज क्रिएटिंग इशू इन द सोसाइटी, इन द कम्युनिटी. इसका मतलब है कि एजुकेशन को काम करने की जरूरत है कि कैसे हम इस स्पाइरल को कंट्रोल कर पाए. STP तो ठीक है, आगे बढ़ी है, लेकिन इतना आगे बढ़ जाइए तो GHD को भी, GHD जो है वो आपको पैर खींच के पीछे कर रहा है, आपको नुकसान में ले जा रहा है. तो होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा नहीं. आप अपने डेवलपमेंट को निगेटिव इस्तेमाल करेंगे, इसका मतलब करेंगे. जिसने एटम बम बनाया उसने बाद में कहा कि हमें पता होता कि हिरोशिमा पे नागासाकी पे बम गिराया जाएगा तो हम कभी एटम बम नहीं बनाते. साइंटिस्ट ने कहा बाद में, मरने के पहले कहा जी, पूरी जिंदगी पछताते रहे. और उन्होंने कहा, हमसे कहा गया था कि एटॉमिक एनर्जी बनाएंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू पावर सप्लाई करेंगे वर्ल्ड को, सोशल वेलफेयर के लिए काम करेंगे. हमें ये पता नहीं था कि ये इतना बड़ा जो है डिस्ट्रक्टिव फोर्स काम करेगा, तो लाइफ को खत्म करेगा. तो बहरहाल जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये NEP कहता है कि वैल्यू सिस्टम, वैल्यूज, एथिक्स एंड सेंसिटिविटी टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, ये भी डेवलप करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा फोकस की जरूरत है. ग्लोबल लेवल पे इसकी डिमांड, ग्लोबल वार्मिंग, है ना, वो सारी के सारी चीजें. तो खुद कहता है वैल्यू सिस्टम के अंदर की ये पूरा दिस इज द कंटेंट फ्रॉम NEP 2020. तो कहते हैं साइलेंट वैल्यूज फॉर लाइफ, पुरुषार्थ की बात करते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ट्रुथ, कमिटमेंट, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, फॉरगिवनेस एंड लव, इमोशंस, एम्पैथी एंड एबिलिटी टू सैक्रिफाइस. ये सारे वैल्यूज हैं जो इंसान को बनाते हैं. पुरुषार्थ के जो 4 चीजें खास तौर पर, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, अब ये डेवलप होना, कंप्लीट इंसान तो तभी होगा ये वैल्यूज उसके अंदर आएंगी. तो हम सिर्फ हम प्लीज म्यूट कर लीजिए, जिनका अनम्यूट हो गया है प्लीज म्यूट कर लीजिए, इसके प्लीज म्यूट कर लीजिए. शाकिर साहब म्यूट करा दीजिए या खुद म्यूट कर दीजिए. HRD से कोई म्यूट कर दे उनको अगर नहीं कर पा रहे हैं.
Then हाँ, प्लीज म्यूट करें प्लीज। म्यूट कर दीजिए फिर रिमूव कर दीजिए, दोनों ऑप्शन है। हाँ, खुद से कर दीजिए, अपने से कर दीजिए, नहीं हो रहा हो तो खुद से करें म्यूट, है ना? ठीक है, तो लाइफ स्किल्स की बात भी करता है NEP 2020, है ना, कि बच्चों के अंदर लाइफ स्किल्स को डेवलप करने की जरूरत है। रेशनल थॉट, करेज एंड रेजिलियंस, सिंप्लिसिटी, टॉलरेंस, केयर, यूनिटी, इंक्लूसिवनेस, ये सारी की सारी चीजें स्कूल एजुकेशन के चैप्टर में, चैप्टर 5 में भी कह रहा है कि बच्चों के अंदर ये क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करना, क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप करना, ये बच्चों को डेवलप करना, ये आजकल के दौर का लाइफ स्किल्स। वासुदेव कुटुंबकम की बात भी करते हैं NEP 2020, द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली, है ना। और दरअसल से बात करने का नहीं, वी नीड टू प्रैक्टिस देम। कथनी में करनी में अंतर होगा तो असर कभी नहीं होता जिंदगी, है ना। वी आर सपोज टू प्रैक्टिस दैट वासुदेव कुटुंबकम, है ना, एंड दिस शुड स्टार्ट फ्रॉम आवर फैमिली। द चैरिटी बिगिंस एट होम, वहां से शुरू करना पड़ेगा, अपने घर से, अपने समाज से, अपने मोहल्ले से। पूरे विश्व को परिवार बनाओगे तो पहले अपने जो आपके आसपास है उनको तो परिवार मानो आप। इसलिए सोशल वैल्यूज, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पीस एंड नॉन वायलेंस, साइंटिफिक टेम्पर, क्वालिटीज ऑफ ए गुड सिटीजन, ये सारी चीजें डेवलप होंगी, तब जाकर के होगा। ये फोकस है मल्टीडिसिप्लिन के थ्रू आएगा। देन एथिक्स की बात हमने ऑलरेडी कर ली है। इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल बैलेंस हम सब जानते हैं कि इसके बगैर दुनिया कहाँ जा रही है, समाज कहाँ जा रहा है, इन्वायरमेंट कहाँ जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की क्या सिचुएशन है, सी लेवल का क्या सिचुएशन है, आप सब जानते हैं। कार्बन फुटप्रिंट के बारे में हम सब जानते हैं। दिल्ली में रहते हैं हम लोग, जो लोग दिल्ली के हैं या मेट्रोपॉलिटन सिटीज के हैं, दिल्ली का तो खास आप न्यूज में आता रहता है कि पोल्यूशन की क्या सिचुएशन हमेशा रहती है, पूरे साल हालत खराब रहता है इस तरह की चीजें। तो वी नीड टू वर्क टुवर्ड्स दैट ऑल्सो। इंडिविजुअल लेवल पे, इनफरादी सतह पे, व्यक्तिगत स्तर पे हमें काम करना पड़ेगा, जिससे कि हम अपने लेवल पे कंट्रीब्यूट कर पाएं ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में, एनवायरमेंटल इम्बैलेंस को ठीक करने में। तो ये जो पूरा का पूरा हमारा होलिस्टिक मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन है, वो दरअसल वो एक फोकस है, एक मुकम्मल शख्सियत के निर्माण करने का, एक संपूर्ण व्यक्तित्व के निर्माण का फोकस है। मुकम्मल शख्सियत को डेवलप करने का एक जरिया है होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी, जिसके अंदर, है ना, जिसके अंदर नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल स्किल्स के साथ साथ एथिक्स एंड वैल्यूज भी आते हैं, है ना। अब ये वैल्यूज क्या हैं? कंपोनेंट्स ऑफ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की जब बात करते हैं तो मोरल वैल्यूज भी हैं, जो एथिक्स बात आई, एनवायरमेंटल रिलेटेड वैल्यूज भी हैं, पॉपुलेशन रिलेटेड वैल्यूज भी इसके अंदर हैं, ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज इसके अंदर हैं, हेल्थ एंड योगा की बात, फिजिकल एजुकेशन की बात, हाइजीन की बात, प्रिजर्वेशन एंड एनरिचमेंट ऑफ कल्चर, जो बात हमने पहले की है। इंडियन, चाहे वो मेजोरिटी हो, माइनॉरिटीज हो, हिंदुस्तान के अंदर डिफरेंट कास्ट के लोग हों, डिफरेंट क्रीड के लोग हों, डिफरेंट कल्चर के लोग हों, उन सब का ख्याल रखना, उन सब को प्रिजर्व अपने कल्चर को प्रिजर्व करने का उनको मौका देना, उनको रिस्पेक्ट करना, ये रखना आपने। साइंटिफिक एप्टीट्यूड एंड टेम्परामेंट, जो बात हमने सब शुरू में की थी आपको, आर्टिकल 51A(H) जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहता है कि भाई साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करना हमारा फंडामेंटल जो है, फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी, फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी। हाँ, मौलिक हमारा कर्तव्य है कि हमारे अंदर चीजें डेवलप हों, कि हम हमारे अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट हो। अब साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या है भाई? इस साइंटिफिक टेम्परामेंट की सबसे बड़ी चीज ये है कि एविडेंस, हाँ, ट्रूथ, उसके मुताबिक फैसला करना, एविडेंस के हिसाब से फैसला करना, जस्टिस करना, रेशनल थॉट होना, रेशनल डिसीजन लेना, लॉजिकल डिसीजन लेना, ये चीजें अब वो तभी आएगा। दरअसल सब आपस में जुड़े हुए हैं, सब आपस में जुड़े हुए हैं, है ना। इनको डेवलप भी करना पड़ेगा, प्रैक्टिस की आदत भी डालनी पड़ेगी। जब ये प्रैक्टिस में आ जाएगा तो कहेंगे कि भाई ठीक है, हम कह सकते हैं कि हमारा एजुकेशन ठीक काम कर रहा है, होलिस्टिक है, मल्टीडिसिप्लिनरी। इसके साथ साथ एजुकेशन फॉर लाइफ स्किल्स की बात जो पहले भी आई, ये लाइफ स्किल्स बड़ा इंपॉर्टेंट है आजकल के दौर में, 21st सेंचुरी में, है ना। NEP ने वहां से लिया था, यूनेस्को 10 जेनरिक लाइफ स्किल्स यूनेस्को ने दिया है, यूनेस्को पूरे वर्ल्ड के लिए उन्होंने एक मार्गदर्शन किया है, गाइड मैप दिया। We need to develop these 10 generic life skills for each and every citizen of the world. Each and every citizen. If these 10 core life skills are developed in the young generation, they are going to lead a good life, a prosperous life,
प्रॉस्पेरस लाइफ, ए सक्सेसफुल लाइफ, ए पॉजिटिव लाइफ, वो क्या चीज है? ये सेल्फ अवेयरनेस उनके अंदर सबसे बुनियादी चीज, सेल्फ अवेयरनेस। अब सेल्फ अवेयरनेस को सबसे पहले रखा है यूनेस्को ने। आपको लगेगा, हो सकता है कि सेल्फ अवेयरनेस करके क्या होगा भाई? अपने बारे में जान करके, अपने बारे में अवेयर होकर के क्या करें? बुनियादी तौर पे अपने बारे में जान के ही सब कुछ करें। अपने बारे में जान के ही सब कुछ कर सकता है। अगर सही तरीके से हम अपने आप को जानते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हमारे कोर स्किल्स क्या हैं, हमारे प्रेफरेंसेस क्या हैं, हम क्यों किसी चीज को पसंद करते हैं, क्यों किसी चीज को नापसंद करते हैं, हम क्या अच्छे से कर सकते हैं, कहाँ हमारा इंटरेस्ट है, कहाँ मेरा एप्टीट्यूड क्या है, मेरा एटीट्यूड क्या है, वगैरह वगैरह। अपने बारे में अवेयर है आप, ट्रूली अवेयर। एक होता है ट्रूली अवेयर होना, एक होता है सिर्फ अवेयर होना। कई बार हो सकता है कि गलतफहमी हो कि हम बहुत अच्छे आदमी हैं, हम समझते हैं कि हम बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत ईमानदार आदमी हैं, बहुत मेहनती आदमी हैं और जस्ट आदमी हैं। समाज के 10 लोगों से पूछा, जसीम साहब के बारे में बताइए कैसे आदमी है। 10 आदमी जो फैसला करेगा, जो बताएगा, मेजोरिटी जो बताएगा वो सही होगा। दैट विल बी राइट अबाउट मी, नॉट व्हाट आई एम सेइंग अबाउट माई सेल्फ। इसलिए हम हो सकता है कई बार अपने बारे में खुशफहमी में मुब्तला हो, कह रहे हैं हम बहुत अच्छे आदमी। ट्राई टू फाइंड आउट वेदर यू आर बीइंग कंसीडर्ड एज ए गुड मैन by others or not. If others consider you as a good man, only then you are a good man. So self awareness, the better the students are aware about themselves, the better they will be in a position to set their goals for life. They will be in a position to set the realistic goals, the goals which can be achieved. Achievable goals can only be set after understanding themselves, himself or herself. इसलिए सेल्फ अवेयरनेस सबसे बुनियादी चीज है और टीचर की जिम्मेदारी है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड व्हाटएवर, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि टीचर पढ़ाने के साथ साथ फिजिक्स पढ़ा रहा हो, केमिस्ट्री पढ़ा रहा हो, बॉटनी पढ़ा रहा हो, जूलॉजी पढ़ा रहा हो, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा हो, ज्योग्राफी पढ़ा रहा हो, साइकोलॉजी पढ़ा रहा हो, व्हाटएवर सब्जेक्ट, वी एज ए टीचर are supposed not only to teach the subject which we are supposed to teach, but with that subject we are supposed to integrate other aspects of personality in a better way. और self awareness is one of them. बच्चों को self awareness भी उनके अंदर करा, अपने 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 सब्जेक्ट के जरिए हो सकता है, उसके जरिए। हाँ, गाइडेंस वर्कर का काम क्या है, काउंसलर का काम क्या होता है? पेरेंट्स काउंसलर है, टीचर इज ए गुड काउंसलर, teacher as a counselor, teacher as a researcher, teacher as a guardian, teacher as a stage setter, teacher as a director, वो सब टीचर सब कुछ है। तो सेल्फ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और आमतौर पे वो लोग कामयाब होते हैं जो सही वक्त पे अपने आप को पहचान लेते हैं। इसलिए कि जो सही वक्त पे अपने आप को पहचानते हैं तो जिंदगी के लिए सही गोल सेट कर पाते हैं और फिर वो अचीव करते हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है कि गलत सब्जेक्ट आपने चुन लिया, कई बार हमारे साथ भी हुआ और आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, खुद के साथ ना हुआ तो किसी और के साथ हुआ हो, कई बार खुद महसूस हुआ, है ना, होता है यार ये क्या सब्जेक्ट हमने ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट गलत ले लिया था, आज लग रहा है कि बेकार किया, ये सब्जेक्ट ले लिया था हमने सोशियोलॉजी, फिलोसफी पढ़ते ज्यादा मजा आता है, फिलोसफी में ज्यादा अच्छा लगता है हमको, ये बाद में पता चला। क्यों बाद में पता चला? इसलिए कि टीचर ने, पेरेंट्स ने और स्कूल ने, वो कॉलेज ने वो इन्वायरमेंट दिया नहीं कि हम अपने अंदर छुपे हुए जो क्वालिटीज थी, जो पसंद थी, जो लाइक्स थी और डिसलाइक्स थी, उसको आइडेंटिफाई कर पाए। इसलिए बच्चों को खुला माहौल देना जरूरी है, ओपन इन्वायरमेंट देना जरूरी है, फ्लेक्सिबिलिटी देना जरूरी है, फ्लेक्सिबल करिकुलम देना जरूरी है, फ्लेक्सिबल एकेडमिक एनवायरनमेंट देना जरूरी है, जिससे कि बच्चे खुल करके अपनी सलाहियतों का, अपनी पसंद का, अपने अवेयरनेस का, अपनी कैपेबिलिटीज का, अपनी पोटेंशियलिटीज का तो दिखा सकें आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और उनकी मदद से आप बता सके यस बेटे तुम ये काम कर सकते हो, इस फील्ड में तुम जाओगे तो अच्छा करो, तुम अगर स्टोरी राइटर बन सकते हो, तुम बहुत अच्छा लिखते हो, है ना, तुम्हारा डायरेक्शन बहुत अच्छा होता है, तुम डायरेक्टर बन सकते हो, हाँ, तुम बहुत अच्छे शेर लिखते हो, तुम जो है संगीतकार बन सकते हो, तुम रिपोर्टिंग बहुत अच्छी करते हो, जर्नलिज्म के फील्ड में तुम बहुत कामयाब हो सकते हो, है ना, तुम अच्छा डिस्कशन करते हो और क्रिटिकल पॉइंट्स को निकालते हो, तुम कामयाब वकील बन सकते हो, तुम जज बन सकते हो। So depending upon the observation that you have with your students, you can guide them,
That is understanding the learner and make them aware about themselves, so that they can set their goals of life in a better fashion that can be achieved. बहुत सारी चीजें. Then empathy है, सब आप जानते हैं. Empathy अगर हमारे अंदर हो तो दुनिया में फिर परेशानी ना हो. हम अगर अपने आप को, है ना, दूसरे को अपनी जगह पर रख के सोचने शुरू कर दें तो शायद दूसरों को परेशानी नहीं करें कभी. तो empathy की कमी है. हम समझते हैं कि बस जो है हम ही हैं, हमारे आसपास तो कोई दूसरा कुछ है ही नहीं. Think about others sitting at your place and then do some judgment. This is empathy. Critical thinking, creative thinking, decision making, problem solving, effective communication, interpersonal relationship, coping with stress जो आजकल बहुत ज्यादा है, बहुत कॉमन है, and coping with emotions, जिसको कहते हैं आजकल इमोशनल इंटेलिजेंस. जिसके पास जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा कामयाब होगा, उतना ज्यादा सोशली एडजस्टेड होगा. कंपनी के अंदर, एसोसिएशन के अंदर, सोसाइटी के अंदर, कम्युनिटी के अंदर, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर वो सोशल एडजस्टमेंट बहुत अच्छा होगा अगर कोपिंग विद इमोशंस आता है. वो सारी की सारी चीजें जो सारी चीजें. तो ये इसलिए ये these 10 skills are supposed to be the core skills, core life skills by UNESCO, and NEP 2020 puts focus on all these skills to be developed in the young generation through deliberation, through different subjects and through different aspects of our curriculum. ये सारी के सारी चीजें. अब क्या है कि एफर्ट्स तो आजकल बहुत हुए वैल्यूज को डेवलप करने के लिए और इन सारे स्किल्स को डेवलप करने के लिए. वैल्यूज के बारे में तो खास तौर पे एनसीईआरटी, एससीईआरटी, सीबीएसई बहुत सारा काम कर रही है. लेकिन देखिए वैल्यूज वगैरह की जो बात करते हैं, जो सब थीम 3 है हमारे होलिस्टिक एंड मल्टीपल एजुकेशन का, वैल्यूज के बारे में बहुत मशहूर कहावत भी है कि वैल्यूज आर टॉट, दे आर नॉट टॉट. अकदार जो है वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं, जज्ब किए जाते हैं, पढ़ाए नहीं जाते. ये पढ़ा करके नहीं आएगा, है ना. ईमानदारी बहुत अच्छी नीति है, सबको ईमानदार होना चाहिए. सिर्फ भाषण देने से नहीं होगा बल्कि एग्जाम्पल सेट करना. बच्चे जिस तरह के वैल्यूज को समाज के अंदर, माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर, फैमिली के अंदर प्रैक्टिस होता हुआ देखते हैं, उन्हीं वैल्यूज को वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, है ना. चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, है ना. कई बार इसलिए होता है ना, मीडिया में क्या होता है, मीडिया किसी गलत चीज को प्रोपेगेट करती है, वही सही लगने लगता है. बच्चे वही देख रहे हैं, समाज उसी को देख रहा है, लगता है ये सही है भाई, हर तरफ से इसी की आवाज आ रही है. वो चीजें वैल्यूज के बारे में, चाहे वो रिलीजियस वैल्यू हो, चाहे वो कोई बिलीफ सिस्टम हो, चाहे वो कल्चरल वैल्यूज हो, सोशल वैल्यूज हो, एथिक्स हो, रेस्पेक्ट टू द पेरेंट्स हो, एल्डर्स हो, सेक्युलर वैल्यूज हो, डेमोक्रेटिक वैल्यूज हो, डोमेस्टिक वैल्यूज हो, नेशनल वैल्यूज हो, ग्लोबल वैल्यूज हो, जो भी एनवायरमेंटल वैल्यूज हो, whatever. So we need to practice those values as a teacher, as a researcher, as a common citizen, so that the young generation, the school students, the UG student can look at all of us practicing those values and they can imbibe from them. That is the only way to develop values in the young generation. अब इसके अलावा दूसरा भी एक रास्ता है कि प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है. लेकिन एज ए टीचर हम लोग थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ टीचिंग, थ्रू डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग, हम बच्चे के अंदर वो सेंसिटाइज कर सकते हैं इन वैल्यूज को डेवलप करने, है ना. वो सारी के सारी चीजें. अब देखिए यहाँ वैल्यूज मे बी इम्बेडेड इन ऑल डिसिप्लिन एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन. हर सब्जेक्ट के अंदर, हर डिसिप्लिन के अंदर वैल्यूज को इम्बेड किया जा सकता है और इम्बेड किया जाना चाहिए. वैल्यूज के लिए अलग से पेपर की जरूरत नहीं है, अलग से किताब की जरूरत नहीं है. किताब और पेपर और सिलेबस बनाया गया, सीबीएसई ने बनाया, एनसीईआरटी ने बनाया, एससीईआरटी ने बनाया, 20, 25, 30 साल से काम हो रहा है, पढ़ाया भी जा रहा है. बच्चों पर एक अलग बोझ भी बन गया, ये किताब अलग से अलग पेपर है, चाहे वो कोर पेपर की हैसियत से है, कभी वो इलेक्टिव पेपर की हैसियत से है, कभी वो सीबीसीएस में जोड़ दिया गया, पीस एजुकेशन, ह्यूमन राइट्स एंड एजुकेशन और वैल्यू एजुकेशन वगैरह वगैरह. ठीक है, अपनी जगह तो सही है, एक लोड बढ़ गया बच्चे का. बट वैल्यू तो ऐसी चीज है कि हर सब्जेक्ट के साथ जोड़ा जा सकता है, लिंक किया जा सकता है, इकोनॉमिक्स के साथ, पॉलिटिकल साइंस के साथ, फिजिक्स के साथ, बायोलॉजी के साथ, केमिस्ट्री के साथ, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाता है अपने अपने सब्जेक्ट में सोच करके देखिए कि क्या हम अपने सब्जेक्ट से क्या वैल्यूज को जोड़ सकते हैं. फिजिक्स वाले के लिए चैलेंजिंग होगा, मैथ वाले के लिए चैलेंजिंग होगा, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होगा, जोड़ा जा सकता है. तो बहरहाल ये सारा एक जो डायग्राम है वो दिखा रहा फाउंडेशनल नॉलेज जो है टू नो डिजिटल, आईसीटी लिटरेसी, कोर
कंटेंट नॉलेज है, क्रॉस डिसिप्लिनरी नॉलेज है, देन मेटा नॉलेज जो है टू एक्ट, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग है, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन है। देन इधर ह्यूमनिस्टिक नॉलेज की बात जब आती है तो यहाँ पर है लाइफ एंड जॉब स्किल्स, एंड देन एथिकल और इमोशनल अवेयरनेस की बात आती है, एंड कल्चरल कॉम्पिटेंस की बात, बहुत ही बड़ा पॉइंट टर्म है कल्चरल कॉम्पिटेंस, बहुत भारी भरकम पड़ रही है। कल्चरल कॉम्पिटेंस, हर व्यक्ति का अपना एक कल्चर होता है, हर समाज का अपना एक कल्चर होता है, और हिंदुस्तान जैसे समाज में एक ही समाज है, एक मोहल्ला है, एक जो है एक गांव है, एक कस्बा है, एक रेजिडेंशियल एरिया है, कई कल्चर के लोग रहते हैं। You need to develop cultural competence, follow your own culture, and at the same time respect the culture of others. This should be the the beauty of our Indian culture. This is the beauty of our Indian culture. वो चीज है, तो ये सब तभी होगा जब हम अपने एजुकेशन को बनाएंगे, होलिस्टिक बनाएंगे और मल्टी डिसिप्लिनरी बनाएंगे, तभी हो सकता है, तभी पॉसिबल है ना। एक हाँ। अब जो बात कर रहे थे हम इम्बेड करने, कैसे करें इम्बेड करने के लिए आपको पेडागोजिकल इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ कंटेंट विद वैल्यूज। फिजिक्स का कंटेंट हो, केमिस्ट्री का कंटेंट हो, बायोलॉजी का कंटेंट हो, ज्योग्राफी का कंटेंट हो, इवन हिस्ट्री का कंटेंट हो, पॉलिटिकल साइंस का, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, उन कंटेंट्स में कंटेंट्स के साथ वैल्यूज को जोड़ना। इट्स वेरी चैलेंजिंग, इतना आसान नहीं, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं, बहुत मुश्किल जरूर है, इम्पॉसिबल नहीं। और कोई जरूर नहीं कि हर कंटेंट के साथ वैल्यूज को जोड़ें, जहां लगे आपको जोड़ा जा सकता है, बच्चों को सेंसिटाइज कर सकते हैं, जरूर करना चाहिए। दैट विल बी द बेस्ट वे ऑफ सेंसिटाइजिंग द चिल्ड्रन एंड द यूथ्स एंड द यूजी स्टूडेंट्स टुवर्ड्स वैल्यूज इनकल्केशन। सेंसिटाइज करने की जरूरत है। मैं साइंस का आदमी हूँ, मैं एक एग्जाम्पल अक्सर देता हूँ, मैं अपनी क्लास में भी देता हूँ कि साइंस में होता है कि होता है कोवेलेंट बॉन्ड, एक होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं कि ट्रांसफर कर देते हैं, दूसरे को दे देते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। हाँ, हाइड्रो HCl बनता है जब, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में शेयरिंग हो रहा है, लेकिन जब सोडियम क्लोराइड बनता है तो वहां पर ट्रांसफर होता है। तो मतलब या तो शेयरिंग होता है या ट्रांसफर होता है ना, आमतौर पर। इसके अलावा कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है, बात केमिस्ट्री की बात ज्यादा गहराई से करने की जरूरत नहीं है अभी। तो अब क्या यहाँ पर एटम, एक बच्चा 9th क्लास में पढ़ रहा है, उसको आप पढ़ा रहे हो, केमिस्ट्री का टीचर है, केमिस्ट्री बहुत अच्छी आती है, और वो टीचर पढ़ा रहा है कि देखो ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है इस एलिमेंट ने दे दिया है पास वाले को कि लो भाई तुम खुश रहो, स्टेबल हो जाओ, हम भी खुश हैं। देखा है किसी ने इलेक्ट्रॉन को? किसी ने इलेक्ट्रॉन को देखा नहीं है, इवन कि एटम को भी किसी ने नहीं देखा। बट दीज इनविजिबल पार्टिकल्स, वो भी उनके पास एक्स्ट्रा जो चीज है वो दे रहे हैं दूसरे को, वो भी खुश है, जो लेने वाला भी खुश है, देने वाला भी खुश, दोनों स्टेबल हो रहा है। हमारे पास एक्स्ट्रा अगर जेब में 2 पेन है, 3 पेन है, हम अपने पास किसी दोस्त को जरूरत के वक्त दे नहीं सकते क्या? देना चाहिए ना, देना चाहिए। हमारे पास कुछ चीज अगर एडिशनल है, ज्यादा है, तो हमारे कम्युनिटी में, हमारे पड़ोस में किसी को जरूरत है तो उसको देना चाहिए। सो वी कैन सेंसिटाइज दिस वे, सेक्रीफाइस। उसी तरह से कोवेलेंट बॉन्ड, जहां पर शेयरिंग होता है, हमारा भी काम चल जाए, तुम्हारा भी काम चल जाए, चलो आप मिल के काम करें। सो वी कैन डेवलप वैल्यूज, वी कैन सेंसिटाइज चिल्ड्रन through these sort of examples in our own subjects. This is integration of content with values. Integration of content with daily life. रोजमर्रा की जिंदगी से बच्चों को जोड़ा जा सकता है वैल्यूज के साथ, जितना ज्यादा। लाइफ स्किल के साथ इंटीग्रेट करना, क्रिएटिंग ए डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट इन द क्लास, क्लास के अंदर डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट वो अपने आप में पैदा करना होगा। डेमोक्रेटिक वे में सारा काम, क्या पढ़ना है बच्चे आपको आज क्लास में, क्या वो नहीं जो हम चाहते हैं पढ़ाना, हम वो पढ़ाएंगे जो आप पढ़ना चाहते हो। आप क्या पढ़ना चाहते हो? कल हमने ये पढ़ा था, आज क्या पढ़ना चाहते हो? व्हाट यू वांट टू स्टडी, आई विल टीच दैट सब्जेक्ट। ये डेमोक्रेटिक है। हाँ, आप किसको बनाना चाहते हो मॉनिटर अपनी क्लास का? नहीं, क्लास को तय करने दो। हम टीचर को तय करने, रमेश रहेगा मॉनिटर हमारे इस क्लास 9th C का, है ना, या BSc फर्स्ट ईयर जनरल का मॉनिटर जो होगा वो रहमान होगा, रमेश होगा, महेश होगा। क्यों? वाई?
एक तरफ तो हम चाहते हैं हमारी जनरेशन, हमारी यंग जनरेशन वो है डेमोक्रेटिक वैल्यूज आए, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को डेवलप करना है, बच्चों के अंदर उसको 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 जो है प्रैक्टिस में लाना है, और हम फैसले करते हैं ऑटोक्रेटिक वे में। दैट इज द प्रॉब्लम। हमें क्लास के अंदर एक प्रोजेक्ट फील्ड विजिट पे ले जा रहे हैं, हम ज्योग्राफी वाले भी ले जाते हैं, बायोलॉजी वाले भी, जूलॉजी वाले भी, बॉटनी वाले भी ले जा रहे हैं, है ना, दिल्ली जामिया से, JNU से, कहीं से भी भाई आप जा रहे हैं, भरतपुर बर्ड सेंचुरी जा रही है, टूर जा रहा है बर्ड्स वॉचिंग के लिए, बर्ड्स बिहेवियर का स्टडी करना। 20 लोगों की टीम जा रही है, 20 PG स्टूडेंट जा रहे हैं, ऑर्निथोलॉजी के लोग जा रहे हैं, जो जिनका स्पेशलाइजेशन ऑर्निथोलॉजी। टीम लीडर कौन रहेगा भाई? टीम लीडर इसका रहेगा, भरत रहेगा टीम लीडर। टीचर ने तय कर दिया भरत रहेगा। क्यों भरत रहेगा भाई? अपनी मर्जी से तय कर दिया आपने। अब बच्चे आपस में बात करने लगे, यार भरत तो मामला गड़बड़ है यार, तो बड़ा खतरनाक आदमी है ये, तो बस अपनी बात चलाता है ये। बच्चे किसी और को ज्यादा पसंद करते हैं, मेजोरिटी। सो हाउ ए डेमोक्रेटिक वैल्यूज कैन बी डेवलप इन द कंट्री इफ वी एज ए टीचर आर बिहेविंग इन एन ऑटोक्रेटिक मैनर? उन्हीं से कहो ना, किसको बनाओगे टीम लीडर भाई? आप लोग 20 लोग हो, आप बताओ किसे बनाना चाहते हो? या तो आपस के कंसेंसस से मान लो, और नहीं तो फिर कचो वोटिंग करते हैं, डेमोक्रेटिक वे में इलेक्शन कराते हैं, हु विल बी द टीम लीडर, सेपरेट वोटिंग के थ्रू करो, पता चल जाएगा आपको हु इज द पर्सन मोस्ट लाइक बाय मेजॉरिटी ऑफ द ग्रुप। फिर देखिए कितना मजा आता है टीम को ले जाने में। सो वी हैव टू practice these things in our class also. And creating secular environment, उसी तरीके से development of will, we feeling among students, respect for everyone, each one is equally important, you know, in a social life, सारी की सारी चीजें। अब सवाल जो हम बात करना चाह रहे थे अल्टीमेटली आखिर में, है ना, वो ये कि होलिस्टिक एजुकेशन के लिए, होलिस्टिक लर्निंग के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए दरअसल में मल्टी डिसिप्लिनरी होना अपने आप में एक रास्ता है। जब तक मल्टी डिसिप्लिन नहीं होंगे होलिस्टिक एजुकेशन हम दे नहीं सकते। हाँ, होना पड़ेगा आपको, तभी हो सकता है। उसकी वजह यह है कि आपको मालूम नहीं है बच्चे की लाइक्स क्या है, उनकी पसंद क्या है, उनके चॉइस क्या है, वो क्या पढ़ना चाहते हैं। ओपन अप होना पड़ेगा, खुलना पड़ेगा, दरवाजे खोल के रखने पड़ेंगे। ये नहीं कि आपको इसी दरवाजे से आना है और इसी दरवाजे से जाना, नो। आप 4 दरवाजे हैं, जिससे चाहो आओ, जिससे चाहो जाओ, फ्रीडम। 20 सब्जेक्ट हमारे कॉलेज में हैं, BA के लेवल पे हैं, जो चाहो पढ़ो। ऐसा नहीं है कि भाई आपने अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री लिया है तो आपको मैथ पढ़ना ही पड़ेगा या बायोलॉजी पढ़ना ही पड़ेगा। केमिस्ट्री बॉटनी आपने लिया है तो आपको जो है बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, मैथ पढ़ना पड़ेगा, पर्टिकुलर सब्जेक्ट, वॉट एवर दे वांट टू स्टडी लेट देम स्टडी। एक तो वो तो फ्लेक्सिबिलिटी की बात, फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट। मल्टी डिसिप्लिनरी लाने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है, और हर टीचर को होना पड़ेगा मल्टी डिसिप्लिनरी। ये नहीं कि हम अपने कहते हैं कि अपने कुएं के मेढक बन के बैठ नहीं रह सकते। इफ आई एम टीचिंग zoology, आई मस्ट नो other subjects which are related to zoology, so that I can link and I can integrate my topics of zoology with other subjects which are relevant. अपनी क्लास में हमें कई बार जरूरत पड़ती है एग्जाम्पल देने की दूसरे सब्जेक्ट से, ताकि बच्चे समझ पाए। जब तक ये नहीं करेंगे बच्चे समझेंगे नहीं। हाँ, एक हिस्ट्री का टीचर है और उसने अपनी क्लास में पढ़ाया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, कि वो पढ़ाया कि अभी आज से जो है 2 महीना पहले मिस्र के अंदर एक जीवाश्म मिला है जो 2500 साल पुराना है। 2500 साल पुराना एक फॉसिल मिला मिस्र के अंदर। या कहें कि हड़प्पा के साइट पे एक नया फॉसिल मिला है जो 2000 साल पुराना है। अरे एक बच्चा हाथ उठाता क्लास में, सर ये कैसे पता चला कि 2000 साल पुराना है या 2500 साल पुराना है? अब हिस्ट्री का टीचर है ये, हिस्ट्री का टीचर क्या बताएगा? वो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। एक तो कहेगा हाँ ये साइंटिस्ट ने बताया है अपनी स्टडी में कि वो 2000 साल पुराना है, कैलकुलेट करके बताया है। दिस इज नॉट अ सेटिस्फैक्टरी आंसर। उस हिस्ट्री के टीचर को जब फॉसिल की बात कर रहा है, उसकी एज की बात कर रहा है, तो उसकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो रेडियो कार्बन डेटिंग को वो पढ़े और समझे, और रेडियो कार्बन डेटिंग का पूरा तरीका बताए क्लास के अंदर कि रेडियो कार्बन डेटिंग होती क्या है, रेडियो कार्बन
डेटिंग का टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया गया है, जिसके अंदर हर जो ऑर्गेनिज्म होता है जब लिविंग होता है तो वो 2 तरह के कार्बन होते हैं, कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है हर बॉडी के अंदर। उसमें एक जो है कार्बन 14 जो है वो रेडियो एक्टिव होता है, एक जो रेडियो एक्टिव नहीं होता है, और उसका हाफ लाइफ पीरियड वो बता दीजिए आप उसको। अगर आपको आप यू कैन इमेजिन in that class the position of the teacher in front of that particular student who has raised the question, the prestige and dignity of the teacher will be at high, will be touching the sky. आसमान छू रहा होगा उस डिग्निटी उस क्लास में। एक हिस्ट्री का टीचर रेडियो कार्बन डेटिंग के बारे में इतना अच्छा से बता रहा है। दिस इज मल्टी डिसिप्लिनरी टीचिंग, और जहां मल्टी डिसिप्लिनरी टीचिंग होगी बच्चे को भी मजा आएगा और समझ में भी आएगा। और जिस बच्चे को हिस्ट्री में इंटरेस्ट होगा, केमिस्ट्री में नहीं होगा, कहा यार केमिस्ट्री, हिस्ट्री का टीचर केमिस्ट्री इतना अच्छा बता रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमको भी केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, इसका मतलब मुश्किल नहीं है। सो इंटरेस्ट इन डिफरेंट सब्जेक्ट विल आल्सो बी देयर। दे विल बी इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड द टॉपिक इन अ बेटर मैनर, इन एन इफेक्टिव मैनर। ये पर्पस है पूरा का पूरा मल्टीडिसिप्लिनरी का। तो दुनिया में कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है which is totally different or totally separate, which can be kept in a watertight compartment separately. No, each and every subject is related to another subject, either having more relationship or having a small relationship, you can say. Right? फिजिक्स और मैथ के अंदर ऐसा रिलेशनशिप है कि फिजिक्स मैथ के बगैर एक स्टेप आगे नहीं बढ़ सकता। हाँ, फिजिक्स और बायोलॉजी में उतना रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी कई जगह है, लेकिन फिजिक्स और मैथ की तरह नहीं है। हाँ, तो किसी के अंदर ज्यादा, किसी के अंदर कम है, लेकिन बिल्कुल खत्म नहीं है। इवन ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स और लैंग्वेज के सब्जेक्ट से भी साइंस का रिलेशन। इसलिए मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात की जा रही है। होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी के लिए, होलिस्टिक लर्निंग के लिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि एजुकेशन को पूरा मल्टीडिसिप्लिनरी होना चाहिए। और बच्चों को आज की नॉलेज, आज की डेट में सिर्फ साइंस और सेपरेटली सिर्फ साइंस या सिर्फ कॉमर्स या सिर्फ आर्ट के 3 कंपार्टमेंट में नहीं बांटना चाहिए, बल्कि उनको ये कहा जा रहा है कि आप फ्रीडम दीजिए बच्चों को पढ़ने के लिए, जो पढ़ना चाहते हो, आर्ट्स, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, है ना, दे कैन टेक अप एनी सब्जेक्ट दैट दे वांट टू टेक, है ना। इसलिए आजकल स्टेम का कोई कॉन्सेप्ट है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, और अब उसमें एक और चीज ऐड हो गया, स्टीम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। ये पूरा का पूरा है, और ये पूरा रिसर्च भी आया है ना, कि अगर इस तरह से पढ़ा जाता है तो बच्चों के लर्निंग आउटकम्स, तो मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच से पढ़ा जाता है तो बच्चे के लर्निंग आउटकम्स ज्यादा आसानी से अचीव होते हैं और लॉन्ग टर्म मेमोरी में बच्चे के जाते हैं। हायर ऑर्डर थिंकिंग, उनकी स्किल्स डेवलप होती है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्वर बनते हैं। उनकी रीजनिंग, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग और इनोवेटिव आइडियाज उनके अंदर डेवलप होते हैं, है ना। क्या अगर इस तरीके से उसको पढ़ाया जाए और उसको आगे बढ़ाया जाए तो ऑल राउंड डेवलपमेंट पर्सनालिटी की होती है। और यही वजह है कि IITs को भी कहा गया है कि आप लोग भी जो है ह्यूमैनिटीज पढ़ाइए। हिंदुस्तान के बहुत सारे IITs ने ह्यूमैनिटीज पढ़ाना शुरू कर दिया, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी और फिलॉसफी पढ़ा रहे हैं। IIT खड़गपुर वाले ने BEd पढ़ाना भी शुरू कर दिया। वो सारी की सारी चीजें, स्टेम करिकुलम, ये है ना, वो सारी की सारी चीजें चल रही है स्कूल लेवल पे भी, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी। तो ये सारा का सारा जो है वो सारी की सारी चीजें हैं। सो इन अ नटशेल, द होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन इज वन ऑफ द most important focus of national education policy 2020, and this is basically a focus towards bringing qualitative improvement in overall education system of the country, and to bring holistic development of the personality of the new generation in the country. So this is these are the main things. I think we have 15 minutes left with us, and we must discuss, we must deliberate, we must learn from one another. And so now I'm going to unshare my slides, and now I'm going to open house for discussion and deliberation. You can put up your questions, and you can also experience your observations, your experiences, and anything that you want to share, you are welcome to share here in the rest of 15 minutes. So thank you so much. Thank you so much. Now the house is open for questions and your observations and your experiences. Vineet, Yes. Vineet, Utpal, and Pallavi. Yes, Gupta. Pranab Vineet, yes. sir, I am a PhD scholar. I was PhD scholar of Jamia Millia Islamia. I have done PhD Oh. in social work department. Oh. Of
जो चीजें चल रही है Your पूरी तरह से कि कैसे एजुकेशन में हो, लेकिन अभी तक देख रहे हैं कि लगातार इस तरह की चीजें अपने समाज में ही, परिवार में ही कम हो चुकी है। टीचर तो आते हैं, स्कूल तो बच्चे बाद में घर में माता पिता दादी या भाई बहन से सीखते हैं उसके बाद। तो ऐसे में एक टीचर कैसे उसको चेंज करेगा यदि उसकी किसी भी स्टूडेंट की बैकग्राउंड उस तरह का ना हो। तो आपने कहा पूरे वसुधैव कुटुंबकम की बात, तमाम चीज एक टीचर के पास तो टीचर बना रहेगा कि 6 घंटे या 8 सिखा में। चलिए, मैं आपका वो आपका आपकी आवाज क्लियर नहीं है विनीत उत्पल जी। जी, योर वॉइस आवाज इज आ नॉट रही है वेरी क्लियर, बट आई अंडरस्टूड योर क्वेश्चन, है ना। देखिए, यू आर सेइंग दैट if the family environment is the home environment is not good, then what teacher can do where students are staying for 6-7 hours in the school, है ना। देखिए, NEP 2020 focuses upon the relationship, the coordination between the parents and the school also. And before NEP 2020 also, there was the provision of parent teacher meeting in the schools. हर स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, और आप भी जाते होंगे शायद, अगर आप पेरेंट हैं तो आपको भी बुलाया जाता होगा, आपके बच्चे जहाँ पढ़ते होंगे PTM होती है, और हर स्कूल का इंटीग्रल पार्ट है। प्राइवेट स्कूल में तो ये बहुत ज्यादा बिल्कुल ही पालन किया जाता है स्ट्रिक्टली, और आपको जाना पड़ता है। आप नहीं जाएंगे तो बच्चों को निकाल देंगे स्कूल से। ये बहुत सारे स्कूल ये भी करते हैं, यू विल हैव टू कम। क्यों? ये रीजन है जो आप रेज कर रहे हैं ना क्वेश्चन। ये इसीलिए है कि आप अपने बच्चे की प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं घर के अंदर, वो बताइए आप स्कूल में, और स्कूल जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो आपको बताए, और दोनों मिल करके बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व करें। गवर्नमेंट स्कूल में प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग होती है तो कम होती है, और जब होती है तो पेरेंट जाते नहीं है, और टीचर उसका पेन नहीं लेते। टीचर को जरूरत है पेन लेने की, टीचर को जरूरत है बच्चों के घर पे भी जाइए, उनके पेरेंट्स से ही मिलिए, है ना। टीचिंग प्रोफेशन इज नॉट जस्ट ए जॉब, इट इज अ सोशल सर्विस, दैट हैज टू बी इन आवर माइंड। तभी हम जस्टिस कर पाएंगे, और तभी हम देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, और अपनी सेवा हम सही तरीके से दे पाएंगे, वो जरूरी। सो वी आर रिक्वायर्ड टू डेवलप ए गुड और हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन द स्कूल एंड द फैमिली ऑफ द चाइल्ड, वो बहुत जरूरी है। ओके, यस, थैंक यू। मेरीना इस्लाम। Yes, sir. And I would like to tell you that I just want to add that the holistic approach is needed for overall development of a child, social, physical, and intellectual, emotional, and moral capacities as well. पर रिसेंटली जो हम देखते हैं, अगर आप कालूसराय में जाए तो देखेंगे क्लास 6 से बच्चे दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल, दे आर अटेंडिंग Dame school, and all are attending the coaching center and wanted to become a IITians, doctor, engineer. बाद में क्या होता है, बहुत सारे मेंटल इश्यूज, सुइसाइडल अटेम्प्ट्स, वो सब बढ़ रहा है। सो वो द पेरेंट्स आर आल्सो रेस्पॉन्सिबल्स, दे उनका जो होलिस्टिक अप्रोच इग्नोर किया जाता है, ओवरऑल डेवलपमेंट को हम नहीं देखते। बच्चों को कैसे इंजीनियर डॉक्टर बने उसको ही ज्यादा एम्फेसिस देते हैं। तो whereas national education policy has emphasized on holistic and a multidisciplinary approach in one sided, at the another sided हम देखेंगे जो वहाँ कोचिंग सेंटर्स में इनका भी इंक्रीज हो रहा है। डामी स्कूल ज्यादा बच्चे क्लास 6 से बच्चे डामी स्कूल अटेंड करे, छोटे छोटे बच्चे आप देखेंगे 11 50 उसमें जा रहे, दे आर नॉट अटेंडिंग द स्कूल भी अटेंड नहीं करे। वो सब पॉलिसी किसके लिए, अगर बच्चे स्कूल नहीं अटेंड करेंगे। दिस वाज माय ऑब्जर्वेशन। Okay, your observation is absolutely good, and your observation goes. 2-3 important things are there सर in this regard. जो हो रहा है बिहार में, अभी तक टीचर जो प्राइमरी स्कूल के थे वो जाते नहीं थे, और उसके बाद अभी जो जैसे के पाठक आया, आपने देखा होगा कि काफी खबरें आ रही हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर कहाँ पे होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाएगा? देखिए, बिहार में जो अभी हो रहा है कि टाइमिंग चेंज हुआ है, 7 बजे से टीचर 6 बजे से शायद बुला रहे हैं स्कूल में सारे टीचर को। ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं, एंड दैट शुड बी टेकन टेकन केयर ऑफ वेरी वेल एंड इन ए बेटर मैनर। वो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं, है ना, कि वो टीचर एसोसिएशन डिमांड कर रहा है कि कम से कम उनको 7 बजे का टाइम दीजिए स्कूल पहुंचने का। उन्होंने कहा है कि 6 बजे आइए, कुछ ऐसी अखबार में पढ़ रहा था, है ना। ये एक अलग मैटर है। जैसा कि मेरीना ने इस्लाम ने बताया कि जो बच्चे ट्यूशन पर रिलाई कर रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, है ना। यहाँ पर अगर मैं अगर इस तरह से कहूँ, इसको पलट दूं बात को, मेरीना इस्लाम जी, कि स्कूल इसलिए नहीं जा रहे हैं कि स्कूल में हम पढ़ाते नहीं है बच्चों को। इसको मैं पलट दूं, अगर इसको स्कूल इसलिए नहीं जा रहे हैं कि हम स्कूल में पढ़ाते नहीं है। अगर स्कूल में पढ़ाने लगे उसी तरीके से जैसे कोचिंग में पढ़ाए जाते हैं,
तो बच्चे स्कूल आएंगे। ये भी अपने आप में एक रियलिटी है जिसको हम सबको एक्सेप्ट करना चाहिए, है ना। मैंने देखा है, पर्सनली मैंने देखा है, मैं जिस कॉलेज से मैंने पढ़ा है, जब मैं अपने शहर जाता हूँ तो मैं उस कॉलेज को देखने जाता हूँ, और जब कॉलेज को आज देखता हूँ तो मैं रोता हूँ कि वो मेरा दौर था जब 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 हम विंटर में, दिसंबर जनवरी के महीने में, विंटर में कॉलेज से तकरीबन 7-8 किलोमीटर दूर मेरा घर था, और साइकिल से जाया करते थे हम स्कूल, और साइकिल के दोनों टायर में जो है, क्योंकि ओस की बूंदे की वजह से पूरा का पूरा गर्द गुबार भर जाता था, और कई बार रुक करके साफ करके पहुंचते थे स्कूल। एंड ईच एंड एवरी क्लास वाज फुल ऑफ स्टूडेंट्स, तमाम क्लासेस भरी रहती थी स्टूडेंट्स के साथ, है ना, और टीचर जबरदस्त पढ़ाते थे, है ना। देयर वाज फुल ऑफ लाइफ इन द कॉलेज। आज उसी कॉलेज में पता चला कि क्लास नहीं हो रही है। टीचर कहते हैं कि बच्चे तो अब कोचिंग जा रहे हैं, वो एडमिशन ले लेते हैं, कोचिंग जाते हैं। तो द प्रॉब्लम इज फ्रॉम बोथ साइड्स। हमें दोनों चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। हमें बच्चों को एजुकेशन देनी पड़ेगी स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, हमें उनको पढ़ाना पड़ेगा। हम लोग भी आपस में देखिए, तो हम लोग के अंदर भी क्या है कि टीचिंग प्रोफेशन के अंदर भी जो अब यूनियन हर जगह है ना, तो यूनियन हर जगह खड़ा हो जाता है अपने अपने इंटरेस्ट को सेव करने के लिए, उसको फाइट करने के लिए। तो अपने आप में ये भी एक इशू है। अब इसको तीसरा एंगल बताता हूँ आपको। अभी कुछ दिनों पहले, मेरे ख्याल में 4-5 महीने पहले कुछ पॉलिसी भी बनी है, कुछ रेगुलेशंस भी आए हैं कि कोचिंग वगैरह को का जो प्रेशर उसको रिड्यूस करने के लिए कुछ आया है कि हर जगह कोचिंग नहीं खोल सकते आप, कुछ पर्टिकुलर इलाके जहाँ पर वहीं पर कोचिंग वगैरह चला सकते हैं। ये भी पॉलिसी आई है उसको क्रश करने के लिए, उसको कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। अब एक और इम्पोर्टेंट बात है कि हमें पेरेंट को भी चाहिए, गार्जियन को भी चाहिए, है ना, कि वो इस पर अपना चेक एंड बैलेंस रखें और उसको कंट्रोल करें। बच्चों को भी, हम लोग चूंकि मेटेरियलिस्टिक ज्यादा हो रहे हैं, जो बात हमने की कोठारी कमीशन की बात की, कोठारी साहब ने जो कहा GH बेस, हम लोग सब पैसे के मान के बारे में सोचने लगे आजकल, होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में सोचते नहीं है ना। हम अर्निंग के बारे में ज्यादा सोचते हैं, इकोनॉमी के बारे में ज्यादा सोचते हैं। इसलिए डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना तो सबसे पहला टारगेट हो गया आजकल। 12th करो और इंजीनियर बन जाओ। मेडिकल और इंजीनियरिंग के अलावा कुछ नजर नहीं आता लोगों को आजकल। PCM and PCB मेन हो जाता है। हाँ, तो इसलिए उस पर फोकस कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि सारा जिंदगी का फोकस वही है। डॉक्टर नहीं बनेंगे तो क्या जो है, लगता है कि जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इंजीनियर नहीं बनेंगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो बच्चों को काउंसलिंग की जरूरत है, और बच्चों से के साथ साथ पेरेंट्स के भी काउंसलिंग की जरूरत है। पेरेंट्स को भी काउंसलिंग की जरूरत है ना, कि वो बच्चों को प्रॉपर तरीके से गाइड करें, है ना। सो ऑफ कोर्स दीज आर द प्रॉब्लम, दीज आर द इश्यूज, बट दीज कैन बी टैकल्ड आउट विद सीरियस एक्शंस व्हिच इज रिक्वायर्ड। नाउ पल्लवी, CBSE के बहुत सारे स्कूल जो कोचिंग सेंटर के साथ इंटीग्रेटेड है। एक दिन जाके प्रैक्टिकल करो, बाकी दिन कोचिंग सेंटर में रहो। तो दिस टाइप ऑफ एजुकेशन हो गया हमारा। उसमें योगा, फिजिकल एजुकेशन, उसमें कोई अहमियत ही नहीं, सिर्फ PCM PCB नीट और JEE ऐसा देखा जा रहा है आजकल। अब ये देखिएगा कि केंद्रीय विद्यालय तो नहीं कर रहा है ना ऐसा, नवोदय विद्यालय तो नहीं कर रहा है। ये तो वो कर रहे हैं जो प्राइवेट स्कूल से। हाँ, अब प्राइवेट स्कूल तो पैसे कमाने के लिए है, वो उनको तो एक स्टेप आगे रहना पड़ेगा गवर्नमेंट स्कूल से, तभी तो उनके पास जाएंगे कस्टमर। ये सारा का सारा मामला इकोनॉमी का ना, दिस इज द प्ले ऑफ इकोनॉमी। तो वो है। एनीवे, पल्लवी गुप्ता, यू आर ट्राइंग टू से समथिंग, पल्लवी? Good evening, sir. Yes, good evening. Nice talk, sir. So I have some observations from your presentation. First of all, thank you for your presentation, sir. मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ NMIMS यूनिवर्सिटी में, नारसी मोंजी यूनिवर्सिटी आपने सुना होगा, मुंबई में। मैं स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। सर मैं मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स और एडवांस माइक्रो, तो थोड़ा वो उसमें मैथमेटिक्स बहुत यूज़ होता है। तो इंटरडिसिप्लिनरी की जब आपने बात कही तो कई दफ़ा वापस जाके 12th स्टैंडर्ड की, 11th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स बुक भी उठा के देखनी पड़ती है, करना होता है सर। और वैल्यू सिस्टम जैसा विनीत सर बोल रहे थे, मैं अग्री करती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसे लगता है कि ऑलरेडी आप इतना पढ़ा रहे हैं, उसके बाद अगर आपको ये भी करना पड़े, कई टीचर्स को ऐसे अगर बर्डन जैसा लगता है कि अब वैल्यूज़ और एजुकेशन जो फैमिली से आनी चाहिए, वो बात सही है, तो वो भी अब टीचर की जिम्मेदारी है, तो वो ऐसा लगता है कि अब हमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। लेकिन सर मैं नहीं मानती, मुझे लगता है कि आप जिस तरह से काम करते हैं, जिस तरह से बात करते हैं क्लास में, आपकी छोटी छोटी एक्शंस और आपके छोटे छोटे जवाब भी आपके काफ़ी हद तक आपके वैल्यूज़ को दिखा सकते हैं। जैसे मेरा सुबह 7 बजे लेक्चर शुरू होता था और मैं एक भी लेक्चर में लेट नहीं हुई हूँ सर, मैं थोड़ा दूर रहती हूँ कॉलेज से,
तो आप अगर सुबह आप खुद टाइम पे आ रहे हैं, या कई कई बार बच्चे आते हैं आपके पास कि मैम मार्क्स थोड़े मार्क्स में देख लीजिएगा, या थोड़े मार्क्स ठीक कर दीजिए, या पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा, बहुत ज़्यादा सिलेबस है, इसको थोड़ा कम कर दीजिए। अगर इस तरीके की आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स हमेशा इस तरीके की सिफारिशों के साथ आते हैं, तो आप उनके साथ कैसे डील करते हैं, आप कितना प्रेशर में आ जाते हैं स्टूडेंट्स, तो वो भी आपकी वैल्यूज़ और एथिक्स को दर्शाता है। तो कई दफ़ा आप उन्हें ना सिखाते हुए भी आप जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, आप इनडायरेक्टली भी उनको दिखाते हैं कि आप खुद कैसे हैं, तो वो आपसे कुछ सीख सकते हैं। और सर रिसर्च के मामले में भी कई बार मुझे जैसे 5-6 स्टूडेंट्स मिले हैं रिसर्च के लिए, लेकिन जो गाइड्स होते हैं, रिसर्च गाइड अगर हैं, तो वो बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। तो कई बार मेरे पास अगर 5 बच्चे हैं तो मेरे पास 15 हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ा भी अगर आपने उनको एक्स्ट्रा टाइम दे दिया, इकोनॉमेट्रिक्स नहीं समझ आता है, बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है, तो आपने इकोनॉमेट्रिक्स में उनकी थोड़ी हेल्प कर दी, तो मैंने देखा कि मेरे पास और भी दूसरे डिसिप्लिन के भी बच्चे आ रहे हैं जिनको इकोनॉमेट्रिक्स से जो रिसर्च करना चाहते हैं। तो सर मुझे लगता है कि आप जिस तरह से एज अ टीचर आप कैंपस में कैसा बिहेव करते हैं और स्टूडेंट से आप कैसा कनेक्शन बनाते हैं, उससे भी आप मतलब आप कंटिन्यूअसली कुछ वैल्यूज़ और एथिक्स तो सिखा ही पाते हैं, इनडायरेक्टली तो आप बता ही देते हैं कि आपके वैल्यूज़ एथिक्स कैसे हैं। तो आपका क्या मानना है सर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? तो मुझे लगता है अलग से सब्जेक्ट ना करके आप इस तरीके से भी आप बता सकते हैं बच्चों को। Absolutely, Dr. Pallavi. And as I said during my presentation, that values are caught, they are not taught. दरअसल वही बात आप कह रही थी। You have to set an example. You have to place yourself as an ideal. You have to reflect the values that you want to inculcate in the learner. तो आप अपने आप को जैसे पेश करते हैं, आप अपने आप को जैसे प्रेजेंट करते हैं बच्चों के सामने, आप उनसे जिस तरीके से बातें करते हैं, आप जिस तरह से उनके क्वेश्चन को लेते हैं, जिस तरह से आप उनके इश्यूज को एड्रेस करते हैं, जिस तरह से आप उनको अपने पास वेलकम करते हैं, जो आप रिफ्लेक्ट करते हैं वैल्यूज, वो बच्चे अपने आप एब्जॉर्व करते चले जाते हैं। दैट इज द बेस्ट वे ऑफ इनकलकेटिंग वैल्यूज। किताब अलग से जोड़ने से काम नहीं चलेगा, किताब पढ़ाने से नहीं होगा। थ्योरी पढ़ा दिया और एग्जाम ले लिया। अरे लिखने को कहिए कि ईमानदारी के बारे में आपकी क्या राय है। हर इंसान कहेगा ईमानदारी अच्छी चीज है और सबको ईमानदार होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस में कितने लोग ईमानदार हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो वी नीड टू बेसिकली set an example. We need to basically reflect whatever values we want to inculcate in the learners. So Pallavi, your observation is excellent, and your experience and your working style, I appreciate that. Thank you so much. Thank you. मेरे ख्याल में डॉक्टर Gladys, if I am correct, Yeah. pronounce. Good evening, sir. Good evening, Yes. sir. Good evening. Good evening. I'm Gladys from Enopoya deemed to be University, Mangalore, Okay. southern part of Karnataka. My comment is your presentation was very good, noteworthy. In olden days, the education was, when we compared the education system to the olden days, it was much better, and the students were so they were full with the values, respect to teachers. And now if you compare, since I'm teaching for a PG students, there is a lot of gap we can see with the present generation, maybe in the sense of respect, values, punctuality, doing the things, because everything is on a tip. No, if you search it in Google, everything will be available. So in fact, they are not much interested in your lectures or anything. If you give them the practical things, they are interested. But again, the system, how it has become is, they come only for the sake of the certificate, or to go abroad, study abroad, only for those things. So in this juncture, how a teacher can inculcate more ethics or the values with the student and attract the students towards the education? Okay, madam. Thank you, Your observation is absolutely correct, and there is one very important observation from my side. When we talk about the education system prevailing in the olden days, at the ancient times, as you pointed out, now you will certainly accept that the
number of students enrolled in those days was very less, very less. And the objectives of enrolling the students into the Gurukul or olden system of education was just to achieve education, just to get education. Shiksha hasil karna, to get education, to take education, to learn how to lead a good life, to learn life skills, to learn values and ethics and morality prevailing those days was the only objective of education. Nowadays, the objective has been shifted towards economy. Now everybody, even parents, are educating their children not to become good human being, but to become a person who can earn better in future and who can create some asset, physical asset. So the objective has got diversified, and the objective has become shifted from man making to money making. This is the big difference. As far as I understand, this is the big difference. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Now we have a challenge because number of students are very large. And we have 100 students in one class. Even in some cases, I have seen 150 students sitting in one class. Now this is a challenge for the teacher, how to address all those students. But despite all these odds, as Pallavi Gupta has pointed out, that is the only way that a good teacher can do. We have to start from ourselves. We have to set our own examples. We have to present ourselves as their guru, as their teacher, as their parent, as their guardian, as their stage setter, as their director, and guide them as far as possible. We can do. We cannot dictate values. This is very simple. Yes. We cannot dictate. You can see here. I was told that 150 participants are there in this session, if I'm right. But I am looking at probably only 52 are there. Only 52, as it is indicating here. So the university teacher has this sort of behavior. I'm sorry to say. So what to talk about the students studying in schools? So not only the issue prevails with the students in schools or university or colleges, but we as a teacher are also on the same line. So we all needs to work together. So thank you so much. I think the time is over, and it was a wonderful session. I think wonderful question from your side. Some of the questions were really very important, and I have also learned a lot from all your observations, your questions. Thanks to HRDC, AMU, Dr. Shakir, and all the participants. Thank you. Best wishes to all of you. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you for your... Thank you, sir. Yeah. Okay. Hello, participants. Am I audible, participants? Yes, sir. Yes, sir. Preeti ma'am, how are you? Jessica ma'am, Virender ji. Okay, I think lecture has ended, and okay, Virender ji. So please join the second link so that we can start another lecture. Thank you, Shakir sir. Thank you. Okay, Madan Mohan ji, there are only 10 minutes, Yes. left. Okay, sir. Okay. Only 9 minutes left, so we can join on another link. We can talk. Okay. So okay, it will be Thank you, convenient. sir. I'm ending here, and we will please join another link. Okay, thank you.